नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह हमें हक़ का हक़ होना दिखा दे और उस पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे, हमें बातिल का बातिल होना दिखा दे और उससे बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे, आमीन या रब्बल आलमीन। And we are doing the book of fasting from our hadith. Precept 148 is Fitr, charity is obligatory. 148 all the way up to 151. The purpose behind Fitr charity is to purify the sins which were committed in the state of fasting. Fitr charity should be distributed before Eid prayer, otherwise it will be considered as an ordinary charity. And people who are entitled to receive zakat are entitled to Fitr charity. Ibn Abbas Raziyallahu anhu transmits Fitr charity is made from Allah's Prophet ﷺ, obligatory on fasting person to purify him of his obstinance, talk, his absurd deeds during the fast, also to provide food to the needy. Whoever distributes Fitr charity before Eid prayer, it will be accepted as Fitr charity. Whoever distributes it after Eid prayer, his Fitr charity will be similar to an ordinary charity. Means वो फितर में नहीं काउंट होगी अगर ईद की नमाज के बाद उसको distribute किया जाए. And precept 152, the quantity or measure of Fitr charity is 1 sa, which is equivalent to 2.5 kilograms or 2 3/4 of seers. So 1 sa जो उसका measure है उसको रफली उलमा ने 2.17 kg, क्योंकि हमें kg समझ में आता है, 2.17 kgs is the measure of उस ज़माने में सा होता था, अब हम kilograms में करते हैं. And Fitr charity is obligatory on every Muslim slave or free, man or woman, minor or major, one who was fasting or not, one who possesses nisab, minimum standard or not. Ibn Umar narrates that Allah's Messenger ﷺ has fixed the measure of Fitr charity as 1 sa of dates, 1 sa of maize, as obligatory on every slave, free person, male, female, minor or major or Muslim. तो फितर आप अपने घर के अंदर जो स्टाफ होता है उसका भी दे दें, अपने जितने छोटे बच्चे होते हैं उसका भी हम निकालते हैं. And then उसके अंदर क्वालिटी है. The quantity is fixed at 1 sa, which is about 2.7 2 gram तकरीबन, ठीक, 2 kg. But उसके अंदर if somebody is affording, can afford 2.17 kgs. अब उसके अंदर if somebody has wealth, then they can give dates का measure. And if somebody doesn't have wealth, तो फिर गंदम, मेज, ये चीजें भी उसके अंदर दी जा सकती है फितर चैरिटी के अंदर. रुपीस के अंदर आपको कन्वर्जन उसकी पता करनी पड़ती है, लेकिन कहते हैं कि it's better to give this. It's better to give the bags of, you know, either wheat or dates or these things, जो अनाज होता है ये देना चाहिए. Even if you're giving cash, 1-2 bags आप ये निकाल दें और साथ में आप cash दे दें. And it is preferable to distribute Fitr charity in the shape of grains. ये आ गया hadith. Fitr charity should be distributed in the form of wheat, rice, maize, date, raisin or cheese which is in use. Abu Sa'id states we distributed as Fitr charity 1 sa of grains, 1 sa of dates or 1 sa of maize, 1 sa of raisin or 1 sa of cheese. ये होता क्या था, फितर चैरिटी ईद की नमाज से पहले डिस्ट्रीब्यूट हुई, ये गरीबों के घर का खाना बनता था इससे. Basically, you see every hadith and every rule of the Quran which is connected to charity is always looking at the socio-economic structure of society, and the purpose of Islam is circulation of wealth. कि ऐसा ना हो कि ईद के दिन जो है वो सिर्फ अमीर अपने घरों में बैठ के खाने खा रहे हो और गरीबों के पास, क्योंकि राशन तो लोग रमजान के शुरू में बांटते हैं, तो बाय द एंड ऑफ द मंथ इफ दे हैव नथिंग तो गरीब बेचारे वो अकेले. तो इस्लाम हैज अ वेरी ब्यूटीफुल वे ऑफ सटली डिस्ट्रीब्यूटिंग द वेल्थ नीड्स टू फ्लो फ्रॉम द रिच टू द पुअर, ताकि वो भी बनाए ईद, यू नो. एंड इट्स अ वेरी ये ख्याल शायद हमें इस तरह नहीं आता कि इसका पर्पस ये है, लेकिन इसके पीछे पर्पस बहुत खूबसूरत है. And precept 156, the time to distribute Fitr charity commences after the breaking of the last fast, but it could also be distributed a day or two
before Eid. And the head of the family should distribute fitr charity on behalf of all members of the household, such as wife, children, and servants. Nafi narrates that Ibn Umar Radhiyallahu Anhu distributed fitr charity on behalf of the members, young and old, of his household, so much so that he distributed on behalf of my sons also. Ibn Umar Radhiyallahu Anhu distributed it among the people who accepted it, and it was a day or two before Eid al-Fitr. तो एक दो दिन पहले भी किया जा सकता है, लास्ट रोजे के दिन भी फितर चैरिटी डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, बट आइदर वे इट हैज टू बी बिफोर द ईद प्रेयर्स ऑन ईद उल फितर. ठीक है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर सूरा. नहमदुहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. So we had done up until ayat number 109 yesterday. 104 to 109 was our last this thing. I just want to touch about some hadiths and finish off that topic, and then we're going to start with 110 and 111 inshallah. Acha. What were we being done? We were being encouraged to become an ummah in the previous ayahs of yesterday. Then we were encouraged कि दर्स और तजरीद का काम किस तरह होगा, अल्लाह का पैगाम किस तरह आगे पहुंचाया जाएगा. We needed sabr for that. We needed ilm for that. We needed to be able to have small egos. अल्लाह पाक ने बहुत encourage किया कि smiling face के साथ आप सल्लल्लाहु ने ये जो मिशन कैरी अप करना है, should be done with a smiling face. Now hadith का मफ़हूम आता है कि if you see evil, stop it with your hand. If you don't have the strength to change it, then stop it by your tongue. And if you don't have that much strength, at least recognize it to be evil in your heart. This is the lowest level of ईमान. यानी सबसे कमजोर ईमान ये है कि बुराई को to be able to recognize it as an evil, दिल के अंदर तो पहचानो ना कि ये बात गलत है. And ये भी unfortunately आजकल बहुत कम है लोगों के अंदर. The ability to recognize evil, even this lowest level of iman, this is also missing within us. Acha. Now, when evil spreads, it is by two ways. The one who does it and the one who is silent on it. ये जो partners in crime है, होता क्या है कि अब for instance कहीं ना कहीं कभी ना कभी पाकिस्तान के अंदर पहली ड्रिंकिंग पार्टी तो हुई होगी ना. इसी तरह कॉमन होता है. अब उस वक्त क्या हुआ होगा कि all the people who had the ilm and all the people who knew that this is an evil were silent. They didn't say anything. तो फिर क्या होता है, फिर उसके बाद बरावा मिलता है, फिर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा. अब हम अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं because the evil is so common that it's in our schools, it's in our colleges, it's within people's homes. And पहले तो ये होता था कि जी अल्कोहल, जी वो कॉमन शादियों के अंदर, और ये आप मेहंदियों की बात करें, लोगों के जनाजों के ऊपर हो रहा है ये काम. वो अल्लाह माफी तो बस अस्तगफिरुल्लाह. और जो मरने वाला चला गया कब्र के अंदर, वो कितने जूते खाएगा कि तुम क्या, तुम्हारे जनाजे के ऊपर क्या काम हो रहा है. लोग पढ़ के कुरान बख्शवाते हैं और यहाँ पे तुम्हारे जनाजे के ऊपर ये अल्कोहल की. वो जब सब चले जाते हैं उसके बाद वो सब बैठ के अपने गम में बोतलें खोल के बैठ जाते हैं. ये अल्लाह माफी. एंड दिस इज अ मुस्लिम कंट्री. This is a Muslim state. So what I'm trying to say is, ये जो आपसे सलाम ने कहा ना कि हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते, जबान से रोको, यानी कुछ बोलो. कुछ लोगों को you have to be able to. हम कहते हैं नहीं जी हम नहीं बोलते, हम बोलेंगे तो लोग हमें जजमेंटल समझेंगे, या हम बोलेंगे तो हमें एक्सट्रीमिस्ट समझेंगे. तो जरूरी नहीं है कि आप तनकीन के साथ बोलें, लेकिन एटलीस्ट यू नीड टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द फैक्ट दिस इज बेसिकली अ मुस्लिम कॉलिंग अ स्पेड अ स्पेड. जो बात गलत है उसको गलत कहने की ताकत नहीं रही मुसलमान के अंदर. दिस इज अ बिग लॉस फॉर द मुस्लिम उम्मा. यू सी, मैं आपको बताती हूँ. देखें, यू आर नॉट अलाउड टू टेक लॉ इनटू योर हैंड्स. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल. बट फॉर इंस्टेंस यू कैन राइट पिटिशंस. हम पढ़े लिखे हैं, हमें तलवारें या डंडे उठाने की जरूरत नहीं है. आप लेटर्स लिखें, अखबारों को लेटर्स लिखें, गवर्नमेंट को अपील करें, स्पीक टू समबडी इन चार्ज के इस ईवल को सोसाइटी से कैसे कर्ब किया जाए. देखें, अल्कोहलिज्म इज अ वेरी रियल ईवल ऑफ सोसाइटी ओवर हियर. और पहले प्रॉब्लम ये था कि अच्छा, एंड लिटरली दे आर अल्कोहलिक एडिक्ट्स ना.
इन आवर सोसाइटी, ठीक है. और पहले मर्द होते थे खाली, अब वुमेन एज वेल. अब जब वुमेन है तो फिर तो समझे कि गया वो घर क्या, वो मोहल्ला क्या, वो खानदान गया. जिस खानदान की औरत जो है वो चली गई इसके अंदर, अल्कोहलिज्म के अंदर, तो फिर इस ईवल को एड्रेस करने की जरूरत है, ठीक है. लेकिन ये जो आयत है हमें क्या दिखा रही कि आज अगर जमाना खराब है, हम भी बहुत मुत्तकी बन के कोने में बैठ के कहते हैं बहुत जमाना खराब है, क्या होगा हमारे बच्चों का. बट अगर आज जमाना खराब है, इसलिए खराब है कि मुसलमानों के मुंह को ताले लग गए. We stopped calling a spade. We stopped speaking up against something that is unjust or something that is wrong or something that is an evil. We stopped talking about it. ठीक है? And then talk करने का तरीका क्या है ये भी समझने. एक होती है दीनी ग़ीबत. हम बैठे और हमने, क्योंकि हमने थोड़ा सा कुरान पढ़ लिया, अब हम थोड़ी अल्लाह रसूल की बातें करने लगे. हम बैठ के दीनी ग़ीबत करने लगे कि हाँ तुम्हें पता था फलाने के घर में ये हुआ, उसकी पार्टी में ये हुआ, उसके, ये डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है. This is ग़ीबत and we will be answerable for this in front of Allah. This is not our place to be discussing. Constructive काम किया जाए ना. Evil brought out and portrayed as evil. जो चीज गंदी है वो लोगों को गंदी क्यों नहीं लगी? मार्केटिंग गलत हुई है ना उसकी, ठीक है. और अल्लाह पाक कह रहे हैं कि ये फला पाने वाले लोग हैं जो ये काम करते हैं, यानी नेकी का, टू स्टॉप फ्रॉम इविल एंड टू प्रमोट गुड. एंड अल्लाह पाक से डोंट डिवाइड विद इन सेक्ट्स. ये कल हमने बहुत किया था ना कि ला तफरकू कि टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाना तुम, ठीक है. तो इसका मतलब ये कि यू कैन लिसन टू अ नंबर ऑफ डिफरेंट स्कॉलर्स बट यू नीड टॉलरेंस. आपको बहुत जरूरत है टॉलरेंस की. एंड you want me to fix that because this is her book. When the ulama, हमारा टॉलरेंस क्या देखे, बाहर जो वो बैठे हुए होते हैं ना, बाहर कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं, they are ulama who come together, 10, 12, 15 ulama who come together, and each of them will be giving speeches. And sometimes in conferences with 2 days, 3 days, उन्होंने hall book कराया होता है. The Muslim public is going there to listen to different speakers. पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं होता? पाकिस्तान में अगर आप 2 उलमा या 4 को अगर आप बराबर बराबर में बिठा देंगी तो वो आपस में डिसएग्रीमेंट्स करना शुरू कर देंगे. So what we don't have basically is we don't have the ability to have people tolerate each other while they are discussing the. This is needed. ठीक है. और जब उलमा fight amongst each other, what happens is that the public becomes disheartened. वो कहते हैं छोड़, हमने करना, लो ये दीन है, ये दीन है. दाढ़ी देखो, उसका पर्दा देखो, उसकी ग़ीबत देखो, उसकी दाढ़ी देखो और उसकी ज़बान देखो और उसकी लड़ाई झगड़ा देखो दूसरे आदमी के साथ. तो पीपल गेट डिसहार्टेंड. वो कहते हैं हमने करना ही नहीं है, रहने दो, ये इस्लाम इज नॉट, ऐसे ये लोग दिखाते हैं, ये तो इनकी हालत है अंदर से, ठीक है. अब पब्लिक क्या करती है, पब्लिक लीव्स दीन बिकॉज ऑफ दिस. सो एंड देन वो इसलिए भी डराते. मैंने आपको कहा इवन वन ऑफ माई स्ट्रगल्स वाज हाफ द टाइम what happened was people used to say to me, इस वाले के पास नहीं जाना, इसका दर्स नहीं सुनना, उसका दर्स नहीं सुनना, उसका दर्स नहीं सुनना, वो तुम्हें यूं कर देगी, वो तुम्हें, तो दर्स ही नहीं सुन सके ना. 10, 20 साल 30 साल जिंदगी के, even though I wanted to, I couldn't listen to the tafsir of the Quran just because of these sects, just because of the fact that we were always scared of going to, इधर नहीं जाना. तो बात ये कि आप कहीं पे भी जाके सुने, सिर्फ बात कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर सुने, ठीक है. एंड तबलीग के काम के लिए यू आर अलाउड टू टेक अ सैलरी फॉर दीन, but you're not allowed to sell deen for it. Now one of the things to understand is, my teacher was telling about this imam साहब जो मस्जिद के इमाम थे. कहती हैं उन्होंने मस्जिद के अंदर सोयम रखाया हुआ था एंड किसी की डेथ हो गई थी मोहल्ले में, एंड उनका जब मस्जिद के अंदर सोयम था, so when she went to the imam साहब, not her husband or somebody spoke to the imam साहब, उन्होंने कहा कि इमाम साहब आपको तो पता है ना कि सोयम बिदअत है, तो आप ये क्यों रखवा रहे हैं? तो उन्होंने कहा आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमारी मस्जिद और हमारा घर इनकी चैरिटी से चलता है, इनके पैसों से मस्जिद के लिए पैसे देते हैं और इमाम साहब के घर के लिए वो पैसे देते हैं. कहते हैं मैं इनको कैसे बोल सकता हूँ, इनको कैसे रोक सकता हूँ. So sometimes what happens is, this is why I say that the wealthy people who are financially independent should be working for deen.
ताकि उनके ऊपर किसी के नोटों का प्रेशर ना हो। ये इमाम बेचारे मजबूर थे, हक उनको पता था, लेकिन वो हक बता नहीं सकते थे क्योंकि उनके ऊपर लोगों के नोटों का प्रेशर था। दिस इज वाई, एंड देन इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए आपको बेझिझक बोल सकती हूँ कि मैं आपसे कोई फीस नहीं लेती हूँ, ठीक है। जब मैं आपसे कोई फीस नहीं लेती हूँ तो मेरे ऊपर किसी का रोब नहीं है कि कल को ये मुझे पैसे देना बंद कर देगी, या मेरे 10,000 रुक जाएंगे, या मेरे 50,000 रुक जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सो व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक is going to be what is in the Quran and the Sunnah, whether you like it or you don't like it. I'm not going to sweet talk deen to you because I need your money. इसलिए कहते हैं कि हुकूमत की तरफ से फंड्स डेवलप किए। पहले ये होता था, पहले खिलाफत के अंदर उलमा काम कैसे करते थे, they some of them had businesses and some of them were financed, यानी उनको स्कॉलरशिप्स दी जाती थी गवर्नमेंट की तरफ से। उनके घर का माल पैसा गवर्नमेंट देती थी ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे और वो अपने दिन का काम कर सकते हैं, एंड दे कैन प्रीच एंड दे कैन प्रैक्टिस एज वेल, ठीक है। और फिर अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं, नाउ दिस इज टुवर्ड्स द एंड ऑफ आयत नंबर 107 108। इसके अंदर कहा जा रहा है कि रिमेंबर कयामत, ठीक है। और ये जो अरबिक आ रही है ना, अकफरतुम बादा ईमानकुम, ये कयामत के दिन के लिए अकफरतुम बादा ईमानकुम के अंदर उलेमा से जिस वक्त पैदा हुए थे तो एवरी सोल इज बोर्न अ मुस्लिम, एवरी ह्यूमन सोल इज बोर्न अ मुस्लिम। उसके बाद फिर काफिर होते हैं ना, तो इसके अंदर इशारा उसकी तरफ को है कि तुम पैदा तो मुसलमान हुए थे, फिर तुमने ईमान छोड़ दिया, यानी तुम काफिर बन गए। एंड अल्लाह पाक इज सेइंग सम फेसेस आर ब्लैक, सम आर ब्राइट एंड शाइनिंग, एंड काफिर, मुनाफिक, मुर्तद और बिदअत करने वाले, इन सब के चेहरे ब्लैक होंगे ऑन द डे ऑफ कयामत, ठीक है। हदीस का मफहूम आता है, उसका मजमून ये है कि बिकॉज ऑफ वजू, जो हम वजू करते हैं, मोमेंट फेसेस एंड ऑल ऑफ द प्लेसेस जहाँ पे हम वजू का पानी लगता है, these are all going to be bright like light coming out of it wherever the water of wudu touches us, ठीक है। आप सल्लल्लाहु said that I will recognize you from this effect of wudu because no other ummah will have this effect। अब हौज़े कौसर पे आपसे सल्लम खड़े हैं, उनको कैसे पता चलेगा कि मुसलमान उम्मा कौन है? उनको वजू के ये जो औजार है ये पूरे जब चमक रहे होंगे, दे बी शाइनिंग ब्राइट फेसेस, वहां से वो उनको बुलाना शुरू करें कि इधर आ जाओ, हौज़े कौसर पी लो। नहीं, this is when the day of Qiyamah is established, and हौज़े कौसर पे क्योंकि क़यामत के दिन प्यास बहुत लगी होगी, हौज़े कौसर का पानी जो पी लेगा उसके अंदर इटर्नली क्वेंच हो जाएगी थर्स्ट, कभी उसके बाद जिंदगी में प्यास नहीं लगेगी। तो इट इज दैट वाटर। बट अब कोई मुसलमान अगर नमाज नहीं पढ़ता तो वुज़ू नहीं करता, तो फिर वो ये सोच ले कि क़यामत के दिन आप सल्लम उसको पहचानेंगे कैसे? आप सल्लम की हदीस के अंदर आता है कि वो पहचानेंगे वजू के औजार से जो चमक रहे होंगे। नहीं, बहुत खलकत खड़ी है, बहुत खलकत खड़ी है, कैसे पहचानेंगे? हाँ, मिक्स खड़े होंगे, बस अल्लाह करे नेकों में खड़े हो। मतलब इट्स नॉट इवन, एक हदीस के अंदर आता है ना कि पीपल आर गोइंग टू बी क्रैशिंग इनटू ईच अदर, तो वो इधर उधर हो जाएंगे ना, ठीक है। और हाँ, लेकिन जो नेक होंगे, जो वीआईपीज होंगे, दे विल बी अंडर अल्लाह's अर्श ऑन द डे ऑफ क़यामत। अब ये वीआईपी के लिए काम करना है, फिर ये तो मतलब खाली मुस्लिम नहीं, मोमिन बनने की जरूरत है अगर वीआईपी सेक्शन में आना है क़यामत के दिन। अच्छा, व्हाट आर देयर फेसेस शाइनिंग फ्रॉम? दे आर शाइनिंग फ्रॉम हैप्पीनेस, ठीक है। व्हाई? बिकॉज़ ये अल्लाह की रहमतों में होंगे, ठीक है। अल्लाह की जन्नत की बईद होगी इनको, जन्नत इज विद इन माय ग्रास्प नाउ। और जिनके फेसेस काले होंगे वो फियर है। काफिर इज गोइंग टू बी हॉरिफाइड ऑन द डे ऑफ क़यामत बिकॉज़ ही इज गोइंग टू रियलाइज दैट आई वेस्टेड माय लाइफ एंड एवरीथिंग दैट द प्रॉफिट सेड, that the Quran said, that the book said, everything that the religious people said is true. Now I can see it. As long as they were on the dunya, they kept denying. They said, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अब क्या हो रहा है कि अब उनकी आंखों के सामने जब आ गया, वो कहेंगे मर गए, अब तो क्या करेंगे? So there is so much of horror, and also they can see hell, and they know that they are being taken towards hell. So their faces turn black. ऐसा होता है कि आप कहते हैं जी चेहरे का रंग उड़ गया, काले हो गए चेहरे, या
खौफ के अंदर आपके चेहरे काले हो जाते हैं. So this is the fear. ठीक है. हदीस का मफहूम आता है कि Allah said to Jannah that you are my rahmat and I will give from my rahmat to whom I wish. And then it is being said in this ayat number 109 that Allah won't put in hell without the evidence being established. The evidence being established. यानी क़यामत के दिन भी अल्लाह पहले प्रूफ कर देगा कि देखो तुम काफिर हो. प्रूफ करके पूरा जज ज्यूरी लग के Allah is the judge, Allah is the jury, and Allah is also the lawyer of that day. और ये सामने सिर्फ खड़े होंगे कौन? The criminal. जब सब एस्टैब्लिश हो जाएगा ना, उसके बाद वो he is going to be thrown into hell. And the last part of this ayat is वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द. ये जो कहा जाता है ना कि unto Allah, ayat number 109, unto Allah belong whatever is in the heavens and the earth, and unto Him are all things returned. This is a very strong ayat. कुरान के अंदर भी ये आती है at the end of some very important debate, and even Muslims can use this ayat at the end of debate कि देखो जो भी मामले they are returned to Allah. मालिक होइए, खालिक होइए फिर. And ayat number 110 and 11. You are the best of all nations who have been raised for mankind. ये किसको कहा जा रहा है? उम्मत मुस्लिमा को. Listen carefully. You enjoy what is right, forbid evil, and believe in Allah. If the Ahlul Kitab, people of the book, believe, then it shall be better for them. Some of them are believers while the majority are disobedient. They will only be able to hurt you a little bit. If they fight you, they shall turn back and flee. Thereafter they shall have no assistance. अच्छा, पहले आयत नंबर 101, 102, 103, 104. These ayats have given us what? The steps that need to be taken to become an ummah. ठीक है, कलेक्ट किस तरह होना है, तकवा इख्तियार करना है. ठीक है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई जा रही है कि why were you created as an ummah? What is the responsibility of the ummah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam? And the responsibility is you were created, Allah Pak is saying, for the correction of people. For the correction of people. This is towards all mankind. The humanitarian cause of the Muslim ummah is that we were sent onto the dunya with this book. We have this mission of Prophet Muhammad sallallahu in our hands. So we have the Quran and the Sunnah in our hands, and we were sent to take and propagate this mission for the correction of people. लेकिन फिर वही वाली बात है, और अल्लाह पाक कह रहे हैं क्या? खैरुल उम्मत हो तुम भेजे गए हो to do good deeds. ठीक है? But what is this? It is conditional until you keep doing good works. That is when you will stay the best ummah. जब अच्छे काम करना छोड़ दिया उम्मत ने, तो हम बेस्ट नहीं रहे दुनिया के ऊपर. But let's look at these when these ayats were coming down. ठीक है? First reference to context, सहाबा के ऊपर these ayats fit. They were khairul ummah. They were doing the best of works. They were going out into society, changing entire villages, entire cities. They were going out onto the world map, और सिर्फ खैर फैला रहे थे, शर नहीं फैला रहे थे. ठीक है? But and Alhamdulillah, our ummah had the best of ulama. We had the best of alims. इबादत गुजार वलीउल्लाह भी सबसे ज्यादा हमारी उम्मत के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह गुजरे. And even today they are alhamdulillah moral Muslims. प्रैक्टिसिंग की बात नहीं कर रही, दाढ़ी वाले मुस्लिम की बात नहीं कर रही. कमाल तो ये है कि दाढ़ी वाला भी हो और मॉरल भी हो. Some people take that part of being that we need to implement in terms of रोजा, ज़कात, शरीयत को वो बहुत strongly ले लेते हैं और हुकूकुल इबाद को फेंक देते हैं. तो मिजाज तल्ख होते हैं, बदतमीजियां होती हैं, लोगों के माल खा रहे होते हैं, हर साल हज उम्रे कर रहे होते हैं और साथ में इंटरेस्ट भी खा रहे होते हैं, और एक तनाजुर है. That's not the balanced face of the Muslim ummah. So, but there are alhamdulillah moral Muslims. There are even immoral Muslims. अच्छा, immoral Muslims का क्या करें? गोली मार दें? No. All they need to do is अस्तग़फ़ार. उनके दिल के अंदर भी है कहीं ना कहीं अल्लाह की मोहब्बत. बस बह गए, शैतान की बातों में आ गए, फंस गए in the web of the shaitan. It's okay. And even if they are immoral Muslims, when they read the Quran and the Sunnah, they will do astaghfar and they will become
मॉरल मुस्लिम्स, खुद उनके अंदर से चेंज आता है, ठीक है। एक है ए मॉरल मुस्लिम। ए मॉरल मैंने आपको कल की क्लास में कहा मोस्ट डेंजरस सॉर्ट ऑफ अ मुस्लिम, बिकॉज ए मॉरल मुस्लिम कहते हैं एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग। कुरान पढ़ो तब भी ओके, अगर जिना कर रहे हो तब भी ओके, अगर तुम रोजा रख रहे हो तब भी ओके, रोजा खोल के शराब पी रहे हो तब भी ओके। ये सिक ट्विस्टेड मेंटालिटी है ना। पहले अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इवन विद इन पाकिस्तान इन द मंथ ऑफ रमजान नोबडी ड्रैंक अल्कोहल। मैं इतनी कह रही पूरा साल वो जैसे भी मुस्लिम थे, नोबडी। आज ये हुर्मत भी उठा दी है, रमजान की हुर्मत हटा दी है। वो कहते ठीक है रोजे में मत पियो और रोजा खोल के पी लो, बात खत्म हो गई। सो ये है ए मॉरल होना ना, कि एवरीथिंग हो सकता है, ये कर लो तब भी ठीक है, ये ना करो तब भी ठीक है। अगर नमाजें पढ़ रहे हो तब भी गुड, अगर नहीं पढ़ रहे तो यू जस्ट बेसिकली नीड टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड दैट्स इनफ। ये ए मॉरल है। बेसिकली क्या होता है, इनसेंसिटाइज हो जाता है ये मुस्लिम। ही हैज सीन सो मच ऑफ सिन and he is surrounded by so much of sin that he has lost the ability to recognize it as sin. अब उसको गुनाह नहीं लगता, अब उसको लगता है ये मतलब क्या है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। ये ए मॉरल मुस्लिम के ऊपर बहुत काम करना पड़ता है। देखिए उनके व्यू में क्या होता है, दे थिंक ह्यूमन मॉरल वैल्यूज चेंज विद टाइम। वो कहते हैं कि कुरान की जो आयतें थी दे वर एप्लीकेबल 1400 years ago, ठीक है। आज का जमाना मॉडर्न है, इसमें नहीं चलता है कुरान और सुन्ना, नहीं। कुरान says human moral values will never change even till the day of Qiyamah. Sleeping with your mother was wrong 1400 years ago, it is wrong today and it will be wrong till the day of Qiyamah. मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज किए। सिमिलरली जिना, वो कहते हैं नहीं, जिना को उन्होंने रोमांटिसाइज इतना कर दिया मीडिया के अंदर कि वो कहते हैं जिना इज ओके ना, बह गई, चलो इश्क हो गया, मोहब्बत हो गई, बस उसके अंदर एक्सक्यूज बना दिया जिना करने का। अल्कोहल का एक्सक्यूज क्या बना है, दुनिया के प्रेशर्स इतने बढ़ गए, वी आर सो मच इन स्ट्रेस, हम तो नहीं पिएंगे तो हमें हार्ट अटैक हो जाएगा, ऐसे भी लोग कहते हैं ना उसमें। तो देखिए इस्लाम कहता है परमानेंट मुस्लिम रिलीजियस वैल्यूज आर परमानेंट एंड अल्हम्दुलिल्लाह इवन टुडे कंपेयर्ड टू ऑल अदर रिलीजन्स मुस्लिम हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल डूइंग दिस अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर। आज भी जितने भी डाउन ट्रॉडन हाल में ये उम्मत है, कल हमने किया था ना वो मोहम्मद यूसुफ की स्पीच, एंड अगेंस्ट दैट स्पीच वी फेल्ट लाइक वी आर कूड़ा, क्या है, हम तो उम्मत भी नहीं है। लेकिन टूटी फूटी हुई उम्मत अल्हम्दुलिल्लाह टुडे हैज अ लॉट ऑफ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स, अ लॉट ऑफ मुस्लिम्स दैट आर स्पीकिंग अप, जो दीन का काम कर रहे हैं। और इस उम्मत का आज भी सिंबल क्या है, हया, हया है, ठीक है। कुछ औरतों के अंदर नहीं है, खत्म कर दिया, पर्दा खत्म कर दिया, लेकिन आज भी दिस इज हाउ दिस उम्मत इज नोन, और इट इज नोन फॉर इट्स इबादत अल्हम्दुलिल्लाह। आप चले बाकी साल छोड़े, रमजान के अंदर देखिए कैसे आपको माशाल्लाह रमजान की रौनकें नजर आती हैं, मस्जिदों की रौनकें, ठीक है। इवन लिटिल किड्स, हमारे छोटे छोटे बच्चे कैसे पूरी पूरी रात इबादत कर रहे होते हैं, जिद कर रहे होते हैं हमें नफलें पढ़नी है, तो है ना, अभी भी मरे से मरे हाल में इस उम्मत के अंदर पोटेंशियल तो है। वी हैव टू बी एबल टू सी दैट। एंड अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं, डोंट बिकम लाइक अहले किताब बिकॉज दे लॉस्ट देयर फजीलत। अच्छा, इस आयत के अंदर कहा जा रहा है कि अगर अहले किताब ईमान लाया तो उसके लिए अच्छा होगा, यानी वो अभी क्या है, फिर अभी तो उसके पास ईमान नहीं है, अभी तो वो काफिर है। दिस इज व्हाट दिस इज सेइंग। एंड अब्दुल्लाह बिन सलाम, he was a Yahud alim in Medina, he brought iman on Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Najashi, the king of Habsha, he was Christian, he brought iman on Sallallahu alaihi wasallam. And even today the maximum number of conversions are from Christianity. I told you ना कि वो बाइबल के अंदर पढ़ते आने वाला आएगा, आने वाला आएगा, वो कहेंगे कौन आएगा। आज भी a lot of people जब वो अपना बाइबल पढ़ते हैं तब भी they are tempted to recognize the fact कि देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे ना ईसा अलैहि सलाम के बाद, तो आखिरी नबी तो वो है।
And Isa alayhi salam told us to bring iman on the last nabi. तो फिर जो वाकई अल्लाह से मोहब्बत करता है, जो हक ढूंढने आता है, अल्लाह उसको हक मिला देता है. ये उनके उसमें आने वाला is still there. Yes, those sentences are there, and Christians get tempted by this only. कि आखिर कौन है भाई? ईसा अलैहि सलाम तो आ चुके थे. अगर हमारा दीन मुकम्मल है तो it has been changed. Yes, but जो बाइबल के पढ़ने वाले हैं वो कहते हैं कि when you read the Bible, the original ayats are like a diamond in a dunghill. इतनी खूबसूरत चमकती हुई ओरिजिनल आयतें हैं इंजील की, उनको खुद पता चलता है कि वो क्या है. तो पढ़े अपनी ओरिजिनल बुक. अच्छा, and then promises of this ayat are conditional. I told you, जब उम्मत बनेंगे, when we fulfill the steps, when we become an ummah, फिर अल्लाह की मदद. So Allah's help is conditional to us becoming a moment ummah again. And तो आज क्या है उम्मत का हाल? दुनिया के ऊपर जलील है. अच्छा, शर्त क्या है? फी सबीलिल्लाह. When war is for Allah, Allah helps. Fee sabilillah. ठीक है. आप सल्लम defeated all of the kabilas of Yahud, and whenever Muslims marched as an ummah for Allah, they didn't lose. They had temporary downfalls, but Allah's help will always come. ठीक है. And if today Muslim ummah is downtrodden, this is also temporary. Inshallah, one day we will collect again as an ummah. Inshallah. And when that day happens, Allah's help will come again. Because I told you yesterday that Allah is not the kafir's friend. If the kafir is victorious today, it's because we let them be. It's because we stopped being an ummah. That's why Allah's help is not with us. But on the dunya, उनको temporary success तो मिला है, जहन्नम का अजाब तो मिलेगा ना उनको. Allah hasn't, nauzubillah, dosti, Allah hasn't changed sides. It's because we are not acting up as an ummah that this honor has been taken away from us. ठीक है? And ayat number 112 to 17. This grace has been smitten upon them wherever they be found, even by the robe from Allah and the robe from man. They return with the wrath of Allah, and wretchedness has been laid on them. This is because they used to reject the verses of Allah and wrongfully murder the Prophet. This is because they were disobedient and used to transgress the limits. They are all not alike. From the people of the book are a group who are staunch upon the truth, reciting the verses of Allah through the night, falling prostrate. They believe in Allah and the last day, enjoin good, forbid evil, and hasten to do good deeds. These are the righteous ones. Whatever good they do shall not be disparaged, and Allah is aware of the pious. Indeed, neither the wealth nor the children of the disbelievers shall be of any avail to them against Allah. They are inmates of the fire, wherein they shall abide forever. The example of that which they spend in the path of Allah is like that of an icy wind that strikes the crops of a nation who have oppressed themselves, utterly destroying it. Allah never oppressed them, but they oppressed themselves. अच्छा, अब ये बताया जा रहा है, एक तो खब्ते अमाल हो रहा है, और ये this is talking about अमाल of the Yahud and the Nasara. अहले किताब के अमाल के बारे में बात की जा रही है. नसारा इज क्रिश्चियन. ठीक है. अब कहा क्या जा रहा है कि इनमें से अक्सर फासिकून है, यानी फिस्क फैलाते हैं, एनार्की. ठीक है. सबसे ज्यादा एनार्की, सबसे बड़ा फिस्क यही है that they call Jesus the Son of God. इस तरह से. ठीक है. अच्छा. And some of them brought iman. Some of them from the Ahle Kitab, they became Mu'min. And Iman is a must for the entry to Jannah. Okay? So fisk is something that is, in easier words, is lacking in them. They want to be Muslim, they want to please God, they want to go to heaven, but Rasulullah sallallahu alaihi wasallam और कुरान के ऊपर ईमान नहीं लेकर आ रहे. So that is the missing formula that doesn't make them Muslim then. That makes them kafir. ठीक है? And for any Rasul, उसकी ताज़ीम करना ज़रूरी है. And they didn't do this. They abandoned their own Shariah, so they left Amal. I told you the Christians removed the Torah from their book. I told you Torah is book 1 and Christian Bible is book 2. They removed book 1 which has all of the Shariah. So now they said we have zero Shariah.
They have nothing which is halal and haram in Christianity. You just have to be a good person. There is no शरीयत के ये खा सकते हो या नहीं खा सकते. ठीक है, एक इसकी तरफ इशारा है. They abandoned their own शरीयत. They suspended it. फिर उन्होंने इल्जाम लगाया अपने रसूलों के ऊपर, अपने पैगंबरों के ऊपर. यहूद एंड नसारा ने इल्जाम लगाया. They made comedies about their own prophets. ठीक है, and ये जो expose इनकी हरकत की जा रही है, Allah simply calling a spade. Allah is not anti-Semitism नहीं है इसके अंदर, इस्लाम के अंदर. Allah is telling the truth, ये हक है. And Allah doesn't need popular vote of people. Allah को कोई नाउज़ुबिल्लाह, he is not a politician. This is not a propaganda. This is the absolute truth. Allah is telling them, तुमने अपनी किताबों के साथ क्या किया जो तुम इतने नेक पारसा बने फिरते हो. अपनी किताबों के अंदर यहूद ने एंड क्रिश्चियंस ने ऐसे इल्जाम लगाए अपने पैगंबरों के ऊपर कि खुद कि आपके पांव के नीचे से जमीन निकल जाए. जिना तक के इल्जाम लगा दिए अपने नबियों के ऊपर. इन्होंने कत्ल किया अपने प्रॉफिट्स को. जब चेंज किया बुक, उस बुक के अंदर लिख दिया जी, बाइबल के अंदर तो पीपल से इफ यू, हम अगेन पहले हम कुरान पढ़ लें. अल्लाह करे कि एक दिन वी कम इनटू अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द कुरान एंड द बाइबल. बाइबल के अंदर कहते हैं वो ऐसे इल्जाम लिखे हुए कि बाइबल इज नॉट, यू कैन नॉट रीड इट इन फ्रंट ऑफ योर चिल्ड्रन. ऐसे अल्फाज, ऐसी स्टोरीज, ऐसी नेकेड न्यूडनेस बाइबल के अंदर डाली हुई. हाउ कैन दैट बुक बी फ्रॉम अल्लाह? हाउ कैन अल्लाह सेंड अ बुक विद फहाशी? मैंने आपको कहा उसके अलग नजर आते हैं जो चेंजेस उन्होंने डाले हुए. फिर उन्होंने बहुत ज्यादा प्रमोट किया क्या न्यूड इमेजरी को चर्चेस के अंदर. सारी तो उनकी एंजल्स नंगी. चर्चेस के अंदर क्या है? Yeah. Subhanallah, Subhanallah. But you see, she was truly. This is what I'm saying. Some people are truly searching for haqq, and Allah knows their journey, and Allah exposes them to situations where they are then able to find. Alhamdulillah, she's talking about her Christian friend who found Islam. और वो कहती है कि वो यही बार बार कह रही थी, जब वो बाइबल पढ़ रही थी तो उसको तो नहीं पता था कि उसमें झूठ लिखा है. इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे जाएगी? जो आलिम है, जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने प्रमोट किया. यू थिंक दैट देयर प्रीस्ट्स सिटिंग इन द वैटिकन डोंट नो व्हाट दे हैव डन विद दिस बाइबल? दे नो. You think everybody in Rome, what's going on with all of these bishops and everything, and their secrecy, and they've got centuries of written text, and कितने सालों की उनकी एजुकेशन है. उनको नहीं पता कि इसके अंदर हक नहीं है. उनको नहीं पता कि क्या इल्जाम लगा रहे हैं. Somebody even said, Nauzubillah, somebody said as much as for the Bible, they said if you want to remove pornography from the dunya, you should first remove the Bible. इतने explicit details लिखे हुए हैं बाइबल के अंदर. Yes, and this is why, like I told you, nakedness, nudeness, statues, ये क्यों promote किए जा रहे हैं churches के अंदर? Because yesterday's class I told you that one of the opinions is that when Dajjal comes, he is going to come in the face of Jesus. The face that is built, that is painted on the Christian churches, is the face that he is going to come in. That's not the face of Isa alayhi salam. Isa alayhi salam doesn't look like that. But the Dajjal is going to come and look like that. And when he comes, he's going to say, yes, I'm the son of God. He's going to make rainfall. He's going to make people come to life. तो सब उसको सजदा कर देंगे, कहेंगे ये देखो ये नहीं ना तस्वीर. He's going to claim to be Isa. He's not going to come and say, I'm Dajjal. सब लोग उसकी इबादत में गिर जाएंगे. The key factor to understand is जब वो अपने मुंह से कहेगा ना कि मैं ही खुदा हूँ, तब ईमान वाले पहचान जाएंगे कि असल में तो ये दज्जाल है. क्योंकि पैगंबर कैसे कह सकता है कि मैं खुदा हूँ? Everybody won't be able to see that eye. सूरह कहफ पढ़ रहे हैं तो आय नजर आएगी, वरना नहीं. काफिर लिखा हुआ होगा यहाँ पे उसके फोरहेड पे, एक हदीस के अंदर आता है. पढ़ेंगे कैसे? हमारे तो ईमान इतने कमजोर है. हमारे सामने कोई ट्रिक्स्टर्स थोड़ा सा मैजिक करके दिखा देते हैं तो हम उनके चक्करों में आ जाते हैं. नहीं, कौन है ये सारे? ये जो बाबा बैठे हुए हैं
फूल झाड़ू लेके मज़ारों के बाहर, क्यों? ईमान की कमजोरी है ना, जो वहां जाके बैठते हैं कि भाई हमारा मसला हल कर दो। तो इतने कमजोर ईमान के साथ मैं तो कहती हूँ 99% सजदा कर देगी इस दज्जाल को, unless we start preparing ourselves and our children, and preparation can only come from the Quran and the Sunnah. अच्छा, then ये फिस्क है तो अल्लाह इसको फिस्क बुला रहा है। अल्लाह doesn't need a defense attorney, अल्लाह हक कह रहा है। अल्लाह ने कह दिया जो तुम इतने पैरागॉन ऑफ वर्च्यू बने बैठे हो अपने वैटिकन के अंदर, और इवन द जूज आलिम वो इतने नेक बनते हैं, इतने नेक बनते हैं कि बस वो कहते हैं हमें तो तुम छू भी नहीं सकते, इतने वो कोई फरिश्ते बन जाते हैं। और उनकी लिखी हुई किताबें public can only read their version of the Torah. The original Torah is not available to the public to read. वो कहते हैं तुम इतने गंदे हो कि तुम कुरान नहीं पढ़ सकते। But they still have it? They have it. They have the Torah. Again, the changed version, the book. ये लोग क्या करते हैं? पैम्फलेट छापते हैं। यहूद के आलिम पैम्फलेट छाप के मस्जिदों में बांटते हैं। नॉर्मल पब्लिक इज ओनली अलाउड टू रीड दैट पैम्फलेट। आप सोचें हम कितने महरूम होते अगर ये कुरान हमारे हाथ में नहीं होता। 14, they don't have this book. They only have the pamphlets that the Yehud Alim give to them. Because the Yehud Alim कहते हैं देखो तुम तो गंदे हो ना, तो तुम अल्लाह की बुक को हाथ तो नहीं लगा सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हम जितने भी गंदे हैं हम अल्लाह की बुक को हाथ लगा सकते हैं, हम इससे हिदायत पा सकते हैं। अदरवाइज सोचिए हम कितने महरूम होते हैं। This, and you see, this is the thing, this is the unaltered word of God. तो अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं कि आप इस चीज से डरें कि उनका हाल अल्लाह के यहाँ क्या होगा। हम जो इतना इम्प्रेस होते हैं ना उनके मैंशन से और पैलेसेस से और फरारी से, उनके उस गजब से डरें जो अल्लाह का गजब होगा कयामत के दिन उनके ऊपर, ठीक है। एंड they have always had this propaganda against Muslims. They have persecuted Muslims from the beginning. Even today they write books like Wars and Virtues of Muhammad. बहुत नाउजुबिल्लाह आप सल्लम की शान के अंदर गुस्ताखी। अच्छा, इनके सब काम कर रहे हैं। मैंने आपको क्या कहा, उम्मत कितनी बेकार है। हम इतने एजुकेटेड लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम उम्मा के अंदर, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू राइट एनीथिंग एज अ रिटर्न टू दीज बुक्स। अगर वो गुस्ताखी में लिख रहे हैं तो आप सल्लम की शान में मुस्लिम उम्मा में क्यों नहीं कोई बैठ के लिख रहा? वेरी वेरी लिटिल, वेरी लिटिल। हम इतना काम नहीं करते जितना वो कर रहे हैं। वो बहुत काम करते हैं हमें जलील करने के लिए, हम जलील होकर चुप करके बैठे हैं। We're not retaliating, we're not using the pen as a sword, ठीक है। And then what issue has been left? देखिए इस्लाम के अंदर हर चीज को इन्होंने इशू बनाया। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा's age was made an issue। तो बस अस्तगफिरुल्लाह, इतना इशू बनाया कि उन्होंने कहा कि she was a child, this was a child marriage, और अल्लाह जाने कितने 100 इल्जाम लगाए। If they had used intellectual honesty, they would have come to the conclusion that 1400 years ago this was the norm. 10-11 साल की बच्चियों की शादी होती थी और बड़े उम्र के लोगों के साथ होती थी। हजरत अली's daughter, रज़ियल्लाहु अन्हा's daughter, was married to उमर रज़ियल्लाहु अन्हा, ठीक है। तो होती थी ना, कॉमन था ना वहां पे। एक आयशा को उठा के उन्होंने क्यों बना, सेंसेशनलाइज करना है उन्होंने, नाउजुबिल्लाह। जब अपने पैगंबरों का हाल किया, they try and do it with our पैगंबर, they try and create sin, नाउजुबिल्लाह, in his life although he was pure of sin, ठीक है। And then even Anas bin As रज़ियल्लाहु अन्हु, देखा हमें पता नहीं है, जब हम अपनी हिस्ट्री स्टडी करेंगे we know that that was a different time, so उसका उस टाइम का कल्चर, उस टाइम के नॉर्म्स भी डिफरेंट थे, उनको रिकॉग्नाइज करें। अब आमिर बिन आस and Abdullah bin Amir bin As are father and son, and they were only 12 years apart. आप सोचिए सिर्फ 12 साल का डिफरेंस था, यानी वो 12 साल के थे जब उनका बेटा पैदा हुआ। नॉर्म था, शादी हो गई हुई थी, बच्चे हो जाते थे। Amr bin As रज़ियल्लाहु अन्हु was the father, and Abdullah bin Amr bin As, ये father and son थे। अच्छा, अब हिजाब को एक इशू बनाया हुआ उन्होंने, सारा प्रोपेगेंडा हिजाब के अंदर है। अगर अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे देखें काफिर क्या कोशिश करें, they think themselves over smart. फ्रांस के अंदर they have now put penalties and they're trying to remove not just the hijab, वहाँ पे तो निकाब है ना,
They're trying to remove that. They're trying to take it out of the schooling systems. Public appearance के अंदर these people are being treated like nauzubillah, like a disease that they would not be allowed out into the public. लेकिन जितना वो कोशिश कर रहे हैं, what they are ending up doing without realizing is that they are encouraging the Muslim youth, the women, to come out stronger on hijab. जिसने बच्ची ने जिंदगी में हिजाब करने का सोचा भी नहीं था ना, उसने कहा how dare you persecute me, how you dare you take away my right to follow my religion and obey my Allah. चलो वो जीन शीन सारे पीछे छोड़ के फुल अबाया में आ गई है. ये हो रहा है दीन का हाल. पूरे पूरे हमें तो नजर नहीं आता. अच्छा हमें यहाँ पे अबाया नजर आता है, हिजाब नजर आता है, यहाँ पे तो किसी के सर पे हेड स्कार्फ भी होता है. They're always the odd one out in the picture. और वहां ऐसी मूवमेंट, एंड दिस इज अ मुस्लिम कंट्री, और वहां ऐसी मूवमेंट्स उठी हैं, ऐसा वेव उठा है अल्हम्दुलिल्लाह, दैट एंटायर कम्युनिटीज हैव बिकम हिजाबी. एंड इमेजिन करें इफ टुमारो द होल ऑफ डिफेंस, नॉट जबरदस्ती, नॉट बाय अ रूल ऑफ लॉ, बट द होल ऑफ डिफेंस, इट बिकेम द कूल थिंग टू वेयर एन अबाया. एंड सारे फिर तो हम भागेंगे ना, डिजाइनर्स को बोलेंगे हमारे अबाया बना के दो, उसमें भी रैट रेस होगी. बट अल्हम्दुलिल्लाह इट वुड बी सो इजी. आवर जनरेशन, जो हमारी टीनेज लड़कियां हैं, देखिए अभी तो हमारे अंदर खुद ही हिम्मत नहीं है हिजाब पहनने की, और हमारे बच्चों से ऑप्शन ही ले लिया गया. दे कांट डिसाइड एनी मोर वेदर दे शुड और दे शुड नॉट. इट्स अ डेफिनेट नो फॉर देम. The greater danger in this is, देखिए जब हम सुन्नतों से दूर चले जाते हैं, when दीन से दूर चले जाते हैं. Another thing I want you to check a lot if you have teenagers in your homes, in your families, is one very popular movement, and it scares me, believe me, मुझे अभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे ये बात करते हुए. But I have spoken to, because my daughter is a teenager, I have access to a lot of teenagers, and they speak to me very freely, very openly, ठीक है. And जो मूवमेंट है in our teenagers today is anti-Muslim. It's cooler to be an atheist. It's cooler to be an agnostic. और जब मैं उनको कहती हूँ क्या मतलब you don't believe in Allah, तो कहते हैं no, we respect Allah, we believe He is one God, but from what I've seen in my life, I really don't practice Islam. I don't believe in any. I don't believe He's taking care of me or has anything to do with me. इतनी दूर चली गई है ये नस्ल, इतनी दूर कि मैं आपको बता नहीं सकती कि ये हमारे मुल्क में हमारे बच्चे आई थिंक कन्वर्ट हो रहे हैं. यस, बाहर वो क्योंकि दीन ज्यादा बच्चों को लेके भी तो जाते हैं ना, बच्चों को दर्स क्लासेस में. आपने देखा किसी को यहाँ पे अपने टीनेज बच्चों को लेकर आए कोई अपने दर्स क्लास के अंदर? नहीं, वो तो खुद आते हुए डरते, कहते बच्चों की जिंदगी क्या अजाब करें. इवन फॉर माई डॉटर आई हैव टू कीप अ वेरी लाइट हैंड विद हर. वो कहती मामा आपने मेरे सारे फ्रेंड्स भगा देने, आपने तो सबको ना पकड़ के आप दर्स देने लगे. सो आई एम ऑल्सो वेरी सॉफ्ट व्हेन आई सी इफ दे आर अप्रोचेबल. आई टॉक टू देम फॉर 2 minutes, 5 minutes, see what get a feel of things, but the feel I'm getting is very scary. It's a popular movement to be an atheist, to not, and their parents don't know. माँ बाप को पता ही नहीं है कि पूरी की पूरी नस्ल तबाह हो रही है हमारी, और उनको पता ही नहीं है. अच्छा क्यों नहीं पता? हो सकता है कि वो नमाज भी पढ़ते हो दिखाने के लिए, अंदर का हाल थोड़ी बता रहे माँ बाप को. Because we don't keep ourselves open to discussion, and the children have nowhere to go. There is no alim who is teaching right now where the teenagers feel that they are safe. A teenager should feel that he is approachable. There should be an alim. He can talk to him about drugs. He can talk to him about alcohol. He can talk to him about anything, and he would be given a reply without being scorned. ऐसा कोई आलिम है पाकिस्तान के अंदर? नहीं है. तो टीनेज तो गई हमारे हाथ से. ये टीनेजर्स, ये बहुत इनके ऊपर काम करने की जरूरत है, और हमारे लिए डरने का मकाम है. हम कहाँ पढ़ रहे हैं कि द उम्मत इज सपोज्ड टू गो एंड स्प्रेड खैर इन द दुनिया. हम अपने घरों में खैर से महरूम हो गए, ये नस्लों से महरूम हो गए हम. ठीक है. अच्छा, तो प्रोपेगेंडा हिजाब का क्या है? What they do is that they attack your family structure, they attack your psychology, and they attack your sociology. उन्होंने कहा rebel against your husband. He's trying to imprison you. That's how they encourage the Muslim women. Take off your hijab. Wear a mini short if you want to. Go do whatever you want to. Me Too movement. Me Too. ठीक है, इतना शोर मचाया Me Too का. एक Jew, there is a Jew marriage counselor
There's a book written by her. I don't have her name, but the book is called I Surrender. I Surrender. She said, my marriage turned around the day I started listening to my husband. The day I stopped rebelling against him. जब मैंने yes कहना शुरू कर दिया, कहती मेरी जिंदगी बदल गई. मुझे इज्जत भी मिली, मुझे मोहब्बत भी मिली. एंड में वो मेरी सारी बातें मान भी लेता था. लेकिन देखें, अल्लाह जो है ना, उसने मर्द को बनाया, उसने औरत को बनाया. अल्लाह नोज मर्द की ईगो थोड़ी फ्रेजाइल है. अल्लाह नोज दिस. तो बात मान लेंगे. एंड में होगा क्या, सारी बातें आप ही की मानी जाएंगी. पहले मानो फिर मनवाओ. Islam actually gives you peace. Even the marriage counseling that has been given in the Quran is phenomenal. आपकी जिंदगी सुकून में आ जाती है. हमारे यहाँ अब बिकॉज ऑफ द वेस्ट हमने क्या सीखा, रेबल विदाउट कॉज बन गई औरतें. रिबेल अगेंस्ट हिम. बर्तन पटको, मैं क्यों उठाऊं, तुम्हारा भी काम है. कर दे, क्या हो जाएगा, अल्लाह की खातिर कर रहे हैं ना, जन्नत ही कमा रहे हैं ना, क्या मसला हो गया. ये जो रेबल विदाउट कॉज है, इन्होंने क्या किया फिर. अच्छा, एक फैमिली स्ट्रक्चर ऐसे डिस्ट्रॉय किया. दूसरा फैमिली स्ट्रक्चर, सारी मुस्लिम औरतों को बना दिया सुपर मॉडल. बेचारियों को पता ही नहीं है कि सुपर मॉडल नहीं है. दैट वाज नॉट देयर जॉब. ओवर इन्वॉल्व्ड इन ब्यूटी, इन एक्सपोजिंग देमसेल्व्स. फिर उसके बाद क्या होता है, देखें पहले पार्टीज पे क्या होता है, पहले थोड़े से कपड़े यहाँ से यूं होते हैं, यहाँ से यूं होते हैं, थोड़े से नीचे से ऊपर होते हैं, ऊपर से नीचे होते हैं, यही होता है ना. उसके बाद क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता करके फिर हाथ में ग्लास आता है, फिर शराब में लगाया, फिर शराब इज नॉट इनफ, फिर ड्रग्स में लगाया. अब जिस घर की माँ शराब और ड्रग्स में है, उस घर की नस्लें तबाह हो गई. उस घर के उसका फाउंडेशन खत्म हो गया. समझे, वो घर मुस्लिम खानदान होते हुए वो यहूद के हवाले हो गया. अब जो शैतान कहेगा वो उस घर के अंदर होगा, कोई लिमिट्स नहीं रहेंगे. सो दिस इज हाउ दे अटैक्ड अस. ठीक है. एंड अल्लाह पाक इज सेइंग, जो आयत 111 में आया ना, मैंने आपको कहा अल्लाह's हेल्प इज कंडीशनल व्हेन वी बिकम एन उम्मत. इस हाल के अंदर हम अपनी शक्ल शीशे में देखें, हम उम्मत हैं क्या? नो, वी कांट बी कॉल्ड एन उम्मत. बट व्हेन वी वर एन उम्मत and when we become an ummah again, they cannot harm us even with their military might. Even psychologically they won't be able to harm us. Religiously, ideologically, they will not be able to harm us. But today they are victorious. Not by the government imposed ना किया, तो क्यों अगर शरिया आएगा तो it will be imposed, right? Yes, but Sharia, yes, but what I'm trying to say is that the Sharia imposed is never going to be followed with an open heart. Sharia needs to come on your heart. I'm saying make it the cool thing. Make it the cool thing to wear hijab. It should be a symbol of, right now it's a symbol of, oh bichari, isko dekho. Not proud of it, बल्कि we look down. कि ओह अच्छी खासी तो होती थी, look at her. ब्लो ड्राई से भी गई, फैशन से भी गई, अब बेचारी. वो भी मैंने देखा है, थोड़ा सा रो रहा होता है. Of course ऐसा ही होगा ना, because there's so much of social peer pressure. और ये मैं बड़ों की बात कर रही हूँ. टीनेजर्स तबाह हो गए ना. टीनेजर्स don't have the strength to do it. Even the adults don't have the strength to do it. So what I'm saying is, rather than it being implied by the Sharia, which it isn't at the time, अगर शरीयत दिलों के ऊपर अप्लाई कर देना, पूरा माशरा चेंज हो जाएगा. सारी जिंदगी शरीयत बन जाएगी. Whether it is in the law or not, when it becomes the law of your heart, when you want to do it. आप imagine करें ना कि आज एक मुस्लिम मूवमेंट उठे यहाँ पे, and government is saying अब आप पर्दा नहीं कर सकते, और आप क्या, अब तो मैं पर्दा करूँगी. How dare you stop me? कैसे ये जिहाद कैसे आता है? In face of difficulties जिहाद आता है जिंदगी के अंदर. हमारी जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ठंडी है कि हम ठंडे मुस्लिम हो गए. We didn't face anything, we didn't struggle for Islam, तो हम बिल्कुल बेकार हो के सो के बैठ गए. हमने कहा बस थोड़ी सी जानमाज बिछा के नमाजें पढ़ लो, that's enough of a Muslim for me. ठीक है. अच्छा, अब किसी ने बहुत खूबसूरत शेर कहा है कि रुकता नहीं था सैले रवां हमारा. मीन्स मदीना से लेके, एक तो if you have time in Ramzan और after Ramzan अपनी खिलाफत के बारे में पढ़ें. When Muslim Ummah was victorious all over the world, Medina से निकले थे, we went all the way up to Spain.
Sicily, our empire, the Muslim empire, was larger than the Roman empire. And it was not a destructive force. It was a constructive force. जिस मुल्क में, जिस शहर में जाते थे, they used to bring betterment towards the civilization. Quantity भी कम थी मुसलमानों की, resources भी कम थे. हमेशा majority ईमान वाले नहीं होते, लेकिन क्या था इनके पास? अल्लाह की मदद थी. अल्लाह की मदद थी always with the Muslims. आज जिल्लत की मार है, ठीक है. अच्छा, जिल्लत की मार किसके ऊपर? मुस्लिम उम्मा के ऊपर तो बाद में आएंगे. अल्लाह पाक जो इन आयतों के अंदर कह रहे हैं ना कि the ones who denied ईसा अलैहिस्सलाम, we did this 2 classes ago also, कि अल्लाह ने कहा बनी इसराइल denied ईसा अलैहिस्सलाम, therefore बनी इसराइल is going to have जिल्लत always. They're always going to be downtrodden in the दुनिया, ठीक है. And throughout history this is true. इसमें दो जो अरबिक्स आ रहे, एक हबले मिन अल्लाह, unless respite is given to them from Allah, means Muslim rulers gave them क्या देते हैं, refuge. Muslim rulers gave them refuge and protected them and made them citizens in their country. Then they were able to survive. And the second one was hable minan nas, by the people, when they are backed by powerful countries. Like the US today is backing the Jews. And the US is a superpower. So when the US is backing the Jews, that's how they can survive in the country. Otherwise they are going to be destroyed, Allah said. अब ये करते क्या देखें? They have romanticized the Holocaust. आज दिन तक, even our kids have to read about the Holocaust, right? They keep making movies about it, keep creating museums, seminars about it, and दुनिया के अंदर you're not allowed to write anything negative about the Holocaust. Do you know what is the population of the dunya, of the Jews? 2%. 2% of humans are Jews. But they have all of the powerhouses of wealth. Banks इनके पास है, finances इनके पास है, media इनके पास है, social media इनके पास है. फेसबुक किसका है? इंस्टाग्राम किसका है? ये गोल्डबर्ग्स कौन है? सब जूस है, सब कुछ इनके पास है. Who backed them? The Americans backed them. World superpowers. Europe backed them. इनको स्ट्रेंथ किसने दी? अब इनकी ये जो 2% पॉपुलेशन है, मैं आपको कंपैरिजन दिखा रही हूँ ना, हम भी तो उम्मत है ना. हॉलोकॉस्ट के बाद they managed to murder billions of Muslims on the दुनिया. We're not allowed to say a word about it. We've never made a film about it. Nobody on the दुनिया knows कितने कीड़ों की तरह मार दिया मुसलमानों को इन्होंने. हमारी तरफ से तो कोई नहीं लिख रहा किताबें. उनकी हॉलोकॉस्ट की किताबें आज तक लिखी जा रही है. उनके हॉलोकॉस्ट के जो सर्वाइवर्स है ना, अब वो जैसे 100 साल के होते हैं या 70 साल के या 90 साल के, हर साल उनकी बर्थडे मनाते हैं. फिर हर साल उनके पास कोई जाएगा इंटरव्यू उनका लेने के लिए, और उसमें वो सारे अपने वो कसीदे पढ़ेंगे कि हमारे ऊपर ये जुल्म हुआ था, ये जुल्म. कैसे भूलने देंगे? दुनिया को नहीं भूलने देते. और यहाँ पे देखें मुसलमानों का क्या हाल है. हम 1.5 अरब हैं दुनिया के ऊपर. ये 2% है, हम 1.5 अरब हैं, लेकिन भूसे जितना हमारा वजन नहीं है. या इतनी लार्ज पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की दुनिया के ऊपर, लेकिन कोई वजन नहीं है ना. उनके हॉलोकॉस्ट के बारे में लॉज हैं. There are state laws that you cannot joke about the Holocaust. It's a touchy thing for them. ठीक है, उसके बारे में नहीं कर सकते. आज 1.5 अरब मुस्लिम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून्स बना के छाप देंगे. मुस्लिम उम्मा एक चीज नहीं कर सकती, एक चीज नहीं कर सकती, एक तिनका नहीं हिला सकते. हम अपनी औकात को पहचाने तो सही जरा. और वाकई निशानी इबरत है हम दुनिया के ऊपर. जिस रसूल के ऊपर वी क्लेम टू लव हिम मोर देन आवर पेरेंट्स, मोर देन आवर फैमिली. आप सोचे ना, अगर आपकी माँ को कोई गाली देता है, आप बर्दाश्त करोगे? तो नाउजुबिल्लाह आपके रसूल का कोई मजाक उड़ा रहा है और सब बैठे हाथ पे हाथ रखे हुए, नो मूवमेंट. व्हाई इज देयर नो मूवमेंट? बिकॉज वी आर नॉट एन उम्मा, बिकॉज वी आर नॉट कलेक्टेड. आज अगर मुस्लिम उम्मा कलेक्ट हो जाए, लुक एट आवर नंबर, लुक एट आवर स्ट्रेंथ, look at our quantity, and we would strike fear in their hearts. But उनको पता है तो टुकड़े वे लो, ये बेचारे, ये मुस्लिम, एक मस्जिद वाला दूसरी मस्जिद के अंदर जाके नमाज तो पढ़ता नहीं है. ये मुस्लिम
डोंट वरी अबाउट दैट, आपस में खुद ही लड़ के मर जाएंगे. नो फोर्स, वी आर नॉट अ फोर्स. How do we retaliate or how do we come back? हाउ, ये कल की आयत है, हमने क्या की थी? स्टेप 1 तकवा, स्टेप 2 होल्ड ऑन टू अल्लाह's rope, स्टेप 3 यूनाइट एज एन उम्मा. How can we unite as an ummah if we're not willing to listen to the other person's talk? Individually. I'm talking Yes, about no, the even as an part, the बेहुरमती वाला part. बायकॉट कर सकते हैं. आप लिखें लेटर्स, सोशल मीडिया, इन्हीं का सोशल मीडिया यूज करें, लेटर्स, पिटिशंस लिखें. ये सब तो कुछ भी नहीं करते ना. लिखे वहां पे आगे 10,000 20,000 फ्रेंच आपके जो एम्बेसडर्स हैं उनके पास पिटिशंस जाए. मैं उस दिन देख रही थी, इवन इन न्यूयॉर्क दे हैड अ डेमोन्स्ट्रेशन. न्यूयॉर्क के अंदर आउटसाइड द फ्रेंच एम्बेसी द मुस्लिम्स हैड कलेक्टेड वेरी पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन. दे सेड वी हैव कम हियर टू शो देम दैट यू कांट टॉक अबाउट आवर प्रॉफिट लाइक दिस. मेक सेंस ना? तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन ये थोड़ी कि अगर गोलियां चला लो और टायर जला लो और बसें जला लो अपने मुल्क के अंदर. फ्रेंच मजे में बैठे हैं ठंडे ठंडे, वो क्रूसों खा रहे हैं. See, this is a mob. This is not an ummah. The difference is our ummah is collected on discipline, on deen, and the leader. I'm going to send it on the group. कि I think 1980s का कहीं ईरान यूनिवर्सिटी का वो था, ad था for an imam. The imam had to have a doctorate. That's how you could become an imam. Shamze, right? Shamze, lovely to meet you. मैं तुम्हें बताऊं कि me and you were supposed to be doing this. That's what happened with this ummah. Educated people were supposed to be preaching deen. फिर ये टायर नहीं चलते. आपने जिस मौलवी को पावर ऑफ अथॉरिटी दे दी है, he has zero exposure. He has no education. He's never traveled outside of Pakistan. He has no exposure. He is obviously going to interpret an angry deen. वो angry bird बन गया ना सारे के सारे. हाँ, मगर वो जो कर रहे हैं वो भी तो डिस्ट्रक्टिव है. They're giving Islam a worse name. They are actually giving Islam a worse name. जब हमारे बच्चे ये देखते हैं, वो कहते हैं लो ये दाढ़ी वाले भी हैं, इन्होंने शलवार. आप तो कहते हैं कि सुन्नत वाले, आप सल्लम, आप तो कहती है कि बहुत ठंडे थे, बहुत मीठे थे, बहुत पीसफुल लाइफ थी. Muslims are supposed to be peaceful people. और ये देखिए ये सुन्नतें कर रहे हैं. Because they claim to be a follower of Muhammad sallam, but they are not representing Muhammad at all sallallahu alaihi wasallam. तज़ादुम बहुत ज्यादा हो गया है. काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. एंड सम रजा, आई विल एग्री, सम आलिम्स बहुत अच्छे होते हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. बट आई एम सेइंग द फ्यू दैट आर दीज एंग्री बर्ड आलिम्स, दे डिस्ट्रॉयड इस्लाम. नॉट जस्ट अब्रॉड, जो हमें बैड नेम मिला वो अलग है. विद इन आवर यूथ, within our future generations, they leave really bad marks on दीन इस्लाम. ठीक है, तो इससे बचने की जरूरत है. और अब जिस तरह कल हमने क्लास में डिस्कस किया कि son's name is Muhammad and people were telling him कि मोहम्मद नाम नहीं रख सकते. अब कहाँ तो हम यहाँ पे आपसे सल्लम की सीरतें सुन्नतें पढ़ के रोना शुरू कर देते हैं. इतनी मोहब्बत है हमारे दिल में. We actually have a genuine love for him even though we've never seen him. राइट. और कहा तो वीजा के चक्कर में मोहम्मद नाम नहीं रख सकते. तो मुझे बताया अगर आज गैरतें नहीं जागेंगी हमारी तो फिर कब जागेंगी? अच्छा, एंड अल्लाह पाक इज सेइंग दे इवन किल्ड देयर प्रॉफिट्स. दिस इज एन अंडरलाइंग थीम. ऐसे लग रहा है कि पता चल रहा है कि अल्लाह बार बार गुस्से से उनको याद दिला रहे. तुम्हें याद है ना कि तुमने मेरे पैगंबरों को भी कत्ल किए जो बनी इसराइल ने किया था. ठीक है. एंड व्हाट अबाउट द वंस हु आर बोर्न नाउ? अच्छा, हम कहते चले ये तो उन्होंने किया था. हमें स्वीट बनने की बहुत आदत है, स्पेशली फॉर काफिर्स. वी ऑलवेज हैव अ स्वीट स्पॉट. हम कहते नहीं, अब चलो वो काम तो उन्होंने किया था, पैगंबरों को उन्होंने मारा था, तो अभी वाले तो बहुत स्वीट होंगे. तो अभी वाले अल्लाह इज एक्सपोजिंग देम. अल्लाह सेइंग व्हाट हैपेंस इज द नेक्स्ट जनरेशन बिकम्स वर्स, मोर रॉटन. The next generation becomes more rotten. So even today, the one who have the Torah and the Bible in their hands, अगर मूसा अलैहि सलाम आ गए, अगर ईसा अलैहिस्सलाम आ गए, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु आ गए दुनिया पे, they will still try and assassinate them. ये बदले नहीं है.
अगर बदल गए होते तो ईमान ले आते ना इस्लाम के ऊपर। ये इनका निफाक वहीं का वहीं है, इनका कुफर वहीं का वहीं है। नस्ल टू नस्ल दे ओन देयर क्राइम्स, दे आर प्राउड ऑफ देयर क्राइम्स, दे आर नॉट अशेम्ड ऑफ इट। ठीक है, और अगर इनके अंदर शर्म होती, मैंने आपको कहा इन्होंने लूत अलैहिस्सलाम पे इल्जाम लगाया, दाऊद अलैहिस्सलाम पे अपनी किताबों में इल्जाम लगाया, अगर ये वाली नस्ल बदल गई होती दे वुड हैव रिट्रैक्टेड इट। पैगंबरों के ऊपर जिना तक के जो इल्जाम लगाए हैं उसको रिमूव कर देते ना बुक से, खुद कह देते, अगर सच्चे होते खुद कह देते नो दिस इज रॉन्ग, ये जेब नहीं देता हमें, पैगंबर ऐसा कर नहीं सकता, नहीं निकाला किताबों में सिवाय ढीठ की ढीठ है ये नस्ल। और देन अल्लाह पाक इज प्रेजिंग, अब अल्लाह की शान देखें, इतनी ढीठ नस्ल, उसमें गिनती के कुछ लोग हैं, फिंगर यू कैन काउंट देम ऑन योर फिंगर्स, इतने कम लोग हैं। अल्लाह पाक कह रहे हैं इनके अंदर भी कुछ नेक लोग हैं, दे आर सम गुड सोल्स। अल्लाह इज एनकरेजिंग देम कि देखो तुम नेक हो, तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, मत जिद करो, मान जाओ, मुस्लिम बन जाओ, तुम आ जाओ दीन हक के ऊपर। ठीक है, और वो क्या करते हैं, यतलूना, दे फॉलो द आयत्स, they read the ayats from their own books, they're practicing from their own books, and वो सजदा करते हैं, तिलावत करते हैं। अब some of their scholars say ये जो सजदा और तिलावत है, अब इसमें भी समझे, वो जब वो अपनी किताब की आयतें पढ़ते हैं, and when they read the Quran they know Quran is haq, वो ईमान ले आते हैं, क्योंकि सजदा मुस्लिम की इबादत, सजदा जो है वो मुसलमानों की इबादत है। और कैसे ईमान लाएंगे, कैसे ईमान लाएंगे, अल्लाह पर ईमान ऐसे लाएंगे कि अल्लाह डजंट हैव अ मदर, अल्लाह डजंट हैव अ सन, मैरी इज नॉट द मदर ऑफ गॉड। यानी ईमान तो वो है, वो कहते हैं हमारा अल्लाह पे ईमान है, लेकिन कैसा ईमान लाना है, हाउ अल्लाह हैज डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ इन द कुरान, ऐसे, दिस इज ईमान, यू हैव टू बिलीव इन अल्लाह विदाउट एनी शिर्क। वो तो फॉलो नहीं कर रहे ना, इस्लाम ही फॉलो कर रहे हैं बेसिकली। नहीं ना, अल्लाह कह रहे वो ईमान ले आए, वो ईमान ले आए, नहीं इसलिए ईमान ले आए कि अगर वो अपनी किताब पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, रातों में सजदे कर रहे हैं, और जब वो कुरान पढ़े तो हक की तरफ आए ना, फिर उनको पता है कि आखिरी नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्यों नहीं ईमान ला रहे, ईगो, ट्राइबल मेंटालिटी। अच्छा, और ट्रू फैक्ट क्या बताया जा रहा है कि तौहीद इज ओनली इन इस्लाम। अच्छा, ये तो उस वक्त के उनका था, आज के आप कह रहे हैं आज भी क्रिश्चियंस जो बिशप्स वगैरह हैं, दे नो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एब्सोल्युटली दे नो, एब्सोल्युटली दे नो। नहीं, okay, now so understand one thing, they claim that they love Allah, but actually they love their power and position more. Churches are attached with a lot of wealth. Let's apply the same thing, यहूद और क्रिश्चियन को हम क्या समझेंगे, हमारे अपने मुस्लिम्स के अंदर ऐसे उलमाए दीन हैं, कुछ बहुत अच्छे हैं, some are attached to their power, वो उस पावर के चक्कर में क्या कहते हैं कि देखो जो पावर से अटैच्ड होता है ना, या वेल्थ से, वो कहते हैं दूसरी मस्जिद में मत जाना, मैं आपको कभी भी नहीं कहूंगी कि आप दूसरे दर्स में मत जाए, इसलिए कि आप इधर आके मेरे पास कोई चैरिटी बॉक्स नहीं रखा हुआ जिसके अंदर आपने लाखों डाल देने, अगर यहाँ से एक बंदा कम हो गया तो मेरे तो लाखों कम हो जाएंगे। यू अंडरस्टैंड, ये जो लाखों, ये जो मनी से अटैच हो जाता है, इट्स नॉट अबाउट द दीन, इट्स नॉट अबाउट द लव ऑफ अल्लाह, इट्स अबाउट द पावर प्ले, एंड देन दे कांट गिव अप दैट पावर प्ले। इसीलिए हमारे कुछ आलिम है जो अल्लाह उनको हिदायत है, वो कहते हैं जी फलानी मस्जिद में मत जाना, उनकी तो नमाज भी कबूल नहीं होती, वो काफिर है, वो काफिर है। अब जब किसी मुसलमान के ऊपर कुफर का फतवा क्यों लगाओगे, इसलिए लगाओगे कि भाई कहीं मत जाना, मेरे पास आना, I need the numbers, I need the following, I need the money finances flowing in, तो just basically they're selling Allah. That's what they're saying. They're saying we are selling. They're saying हमारे जो चार इमाम हैं, what we believe is कि within the चार इमाम, whatever their opinions, despite their different opinions, whatever the opinions these four imams have given, anyone who is following them is following Islam. बात खत्म हो गई। उसका क्या हिसाब है, कितना उसने अच्छा किया, कितना उसने बुरा किया, अल्लाह खुद ले लेगा हिसाब, आपको और मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। This gives you a broad perspective. This gives you respect for all factions of your deen, without pulling the other's legs. लेकिन ये जहां आपको कह दिया जाए ना कि नाउजुबिल्लाह, यहाँ तक लोग कहते हैं कि वो काफिर है,
ठीक है, कुफर के फतवे जब लगाते हैं फिर वो ये भी कहते हैं आप देखो काफिर हैं, आप काफिरों से अगर निकाह करोगे तो बच्चे तो नाजायज ही होंगे। तो सर बैठ के मतलब उन्होंने नस्लें तबाह कर दी। उन्होंने कहा दो काफिर, अगर अल्लाह माफी जो मुसलमान है जिनको ये काफिर कह रहे हैं, अब कह रहे हैं जब दो काफिर आपस में निकाह करते हैं तो काफिर का तो निकाह नहीं होता है, उसके पास तो ईमान ही नहीं, उसका निकाह नहीं होता, तो उसकी नस्लें जो है वो भी सारी की सारी वो है, यानी इलिजिटिमेट। इतने इतने इल्जाम, इतनी अगली हेट स्पीच फॉर द मुस्लिम उम्मा। मैं कहती हूँ ये इस चीज से नहीं डरते कि अल्लाह गिरबानों से इनको पकड़ेगा कयामत के दिन। खाने काबा में भी उन इमाम के पीछे वो लोग नहीं पढ़ते। Some people वो हाँ खाने काबा के इमाम के पीछे भी नहीं पढ़ते नमाज, यस, जमात नहीं पढ़ते। वो कहते हैं वो भी उनकी वो भी जमात उनकी नाउजुबिल्लाह तो बस एक्सेप्टेड नहीं है। खाना काबा की नमाज की जमात जो एक नमाज 1 लाख नमाजों के बराबर है, बेचारे रह गए ना महरूम रह गए, नहीं मिली उनको लाख नमाज। नहीं मानते काबा को, हाँ इमाम काबा को नहीं मानते, वो कहते हैं वी आर मोर पायस देन हिम। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ईगो एंड पॉलिटिक्स एंड वेल्थ। This is nothing to do with ईमान and heart and the true search for haq। इसको recognize करें, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। बनी इसराइल में था, तबाह हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और हदीसों के अंदर हमें बता दिया उनका क्या हश्र हुआ। फिर हदीस के अंदर ये भी बताया कि तुम भी उनसे इतनी मुताशाबहत करोगे कि यू आर गोइंग टू लुक लाइक 2 आइडेंटिकल पेयर ऑफ शूज। इतना तुम उनको जाके फॉलो करोगे, इतना तो कर रहे हैं ना आजकल। आज ये हदीस हक हो चुकी है, एग्जैक्टली द सेम थिंग। अब एंड ऑल्सो यौम आखिरा के ऊपर कैसे बिलीव करना है। ईमान अबाउट एवरीथिंग दैट हैपेंस आफ्टर डाइंग इज ईमान अकॉर्डिंग टू व्हाट द कुरान एंड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज टोल्ड अस। यानी ईमान बिल गायब भी है हमारा। किस चीज के ऊपर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, जो हदीस बता दी कि जो मर गया उसकी कयामत वाक़ई हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद मोमेंट्स वहां रखा है स्पीकर के पीछे, देन द मोमेंट्स ऑफ डेथ। कुरान के अंदर आता है ना वन्नाज़ियाति ग़रक़न वन्नाशिताति नश्तन, कि कुछ एंजल्स जो है वो खींच के निकालेंगी रूह को और कुछ सॉफ्टली निकालेंगी। सो व्हाटएवर द डिस्क्रिप्शन हैज बीन गिवन इन द कुरान, मौत इस तरह होगी। फिर वी बिलीव इन द ग्रेव। ग्रेव के अंदर मुनकर और नकीर के सवालात कैसे होंगे, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, कुरान और सुन्नत ने बताया, ठीक है। बरज़ख कैसे होगा? बरज़ख की जिंदगी या तो जन्नत होगी या जहन्नम होगी। बरज़ख की जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। कब्र से निकलेंगे, फिर हशर के मैदान में खड़े होंगे। हशर का मैदान कैसे होगा? जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान ने बताया। इन द बाइबल एंड द कुरान दे हैव कंप्लीटली एडिटेड आखिरत। देयर इज नो डे ऑफ जजमेंट, ना होने के बराबर है। आखिरत का, जन्नत का, जहन्नम का उन्होंने उसका वही निकाल दिया, डिस्क्रिप्शन ही निकाल दिए जहन्नम की। देयर इज नो, तो किस चीज से बढ़ेंगे, डरेंगे? तो अल्लाह पाक कह रहे हैं कि दे इनवाइट टू गुड एंड इस्लाम। Inviting to good over here is inviting to Islam, and stopping from evil is stopping from shirk. ये कौन काम कर रहे हैं? These are reverted Muslims. ये कोई क्रिश्चियन था, कोई यहूद था, जब वो मुसलमान हुआ, then when he goes towards his family and he does tabligh and he says, look at me, my life has changed, you should really come towards this deen. तो वो क्या कर रहा है? तबलीग का काम कर रहा है। और this is him spreading some noor and minas solihatin, ये नेक लोगों में है। अच्छा, नेक लोगों का बार बार जिक्र इसलिए आता है कि हदीस का मफहूम आता है कि हर शख्स अपने दोस्त के दीन पर होता है। दोस्त के दीन पर होता है, हर शख्स अपने दोस्त के दीन पर होता है। ये बहुत स्केरी है। अब हम दीन वाले दोस्त बनाए, बिकॉज यू सी व्हाट हैपेंस इज, हम कहते हैं ना कि कंपनी अफेक्ट्स यू। हो सकता है कि आप you feel that you are probably the most neck, and all my life this is what I did. I surrounded myself with people who are not so neck, ताकि I would just be like, अपने आप की खुद ही खुश रहती थी मैं। देखो वो तो नमाज भी पढ़ रहे, नहीं पढ़े, मैं तो नमाज भी पढ़ी हूँ, तहज्जुद का तो उनको पता ही नहीं है, मैं तो तहज्जुद भी पढ़ी, खुद ही अपनी तारीफें करते रहे। What makes that happen is that you become stagnant and you become a complacent Muslim कि I'm already doing too much भाई, मुझे तो ये भी मैं बहुत ओवर कर रही हूँ, जरूरत नहीं है। जब आप नेकों की कंपनी में आते हैं, जब मैंने कुरान क्लास ज्वाइन की
और मैंने उनकी जिंदगियां देखी एंड रियली सम ऑफ दीज वुमेन एक्सेप्शनल, वेरी ओल्ड इन एज, बट इवन इन दैट एज उनके पास हिम्मत थी कि वो दिन में 10-10, 12-12 नफले तो ऐसे ही पढ़ लेती थी एक्स्ट्रा. They lived their life for the Quran and the Sunnah. जब मैं उनको देखती थी तो मैं कहती थी अल्लाह मुझे तो अपना आप, मैं मुस्लिम भी नहीं लग रही हूँ. In comparison to them, मुझे अपना आप मुनाफिक लग रहा है. So what happens is when you create that company of good and Muslim people around you, you're inspired to become a better Muslim. तो अल्लाह पाक कह रहा है जमा करो ऐसे लोग, ढूंढो ऐसे लोग, ऐसी दोस्तियां बनाओ. हमने आज तक सिर्फ पैसे और माल के लिए दोस्तियां बनाई है, सोशल क्लाइमिंग के लिए दोस्तियां बनाई है, एंड दोस्त दोस्तियां नेवर बेनिफिशियल टू अस, नेवर. ठीक है, तो मिन खैरिन इज एवरी स्मॉल गुड डीड इज रिवॉर्डेड. अल्लाह इसकी कदर करता है. अहले किताब वंस एंटर्ड इनटू इस्लाम, अच्छा वंस एन अहले किताब एंटर्स इनटू इस्लाम, व्हाट हैपेंस, काफिर जब मुसलमान बनता है तो उसकी जिंदगी में जितने उसके गुड डीड्स थे एज अ काफिर, दे आर आल्सो रिवॉर्डेड. पास्ट सिन्स आर ऑल फॉरगिवन. लेकिन अहले किताब जब मुसलमान होता है उसने असल में दो गवाहियां दी. एक वो अपने दीन पे था और फिर उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो डबल मुस्लिम है. एक वो मुस्लिम अपने दीन पे था, he followed his book, he followed his prophet, and then when he converted, he followed the haq and followed Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the Quran. वो तो डबल मुस्लिम हो गया ना, तो उसको बोनस पॉइंट्स मिल रहे हैं. उसके सारे गुनाह काफिर के वैसे ही जीरो हो जाते हैं. he is like a newborn baby, and also उसके previous good deeds are rewarded. ठीक है, and दीन को छोड़ना means अब उनके लिए क्यों डबल रिवॉर्ड है? जब क्रिश्चियन मुसलमान होता है, हाउ पेनफुल इज इट दैट the family is Christian, and now this one person gets up and becomes Muslim, and he's standing as the odd one out, and he's going to be looked down, and he's not feeling the love of his family. He's trying to be good to them still. You are allowed to be good to your kafir parents even. So he's trying to, मगर struggle बहुत ज्यादा है, जिहाद बहुत ज्यादा है. ठीक है, और खुशियां गम उनके साथ होते थे फैमिली के साथ, तो नाउ ही इज बीइंग गिवन अ डबल रिवॉर्ड. एंड डोंट लेट द दुनिया बी बैरियर्स. अच्छा, ये तो हम क्रिश्चियन की बात करें, आई हैव सीन दिस हैपन इन मुस्लिम फैमिलीज. इन मुस्लिम फैमिलीज when there is a young teenage boy or a teenage girl and they start studying deen and they become a little strong in that deen, तो people have told me कि भाई उनको समझाओ तो मुल्ला बन गया. मतलब now the rest of the family, because it wants to be conveniently kept in its life of sin, the rest of the family is revolting against this one teenage boy. क्या तुम बात पे भाग के मस्जिद चले जाते हो नमाज पढ़ने? दाढ़ी क्यों रखी? शलवार क्यों ऊंची की? Everything becomes now, अल्लाह माफी, काफिर अपनी औलाद का इतना बुरा हाल नहीं करते जितना मुसलमान. इसको लिटरली पढ़ के फुकवा रहे होते हैं कि इसके ऊपर से जिन उतरे ये दीन का. That's what they say. इसके ऊपर से जिन उतरे, ये तो पागल हो गए. ये तो ये रिवॉल्ट आता है. दुआ करें कि हम प्यार मोहब्बत से घर वालों को भी साथ लेके चले, किसी को पीछे ना छोड़े. ठीक है, डोंट लेट अच्छा दुनिया बी द बैरियर. एंड अगर ईमान होगा तो सदका जारिया औलाद बनेगी. अगर ईमान नहीं होगा, आप मर गए, आपकी औलाद सदका जारिया नहीं बनती काफिर के लिए. ठीक है, और काफिर की जहन्नम पक्की है. जहन्नम है क्या? The fire of Jahannam burns 69 times stronger than the fire of the dunya. 69 times stronger. आप सल्लल्लाहु की हदीस का मफ़हूम आता है, if a Jahannami was put in a room of fire in the dunya, if a Jahannami was put in the fire room, मैं इसलिए कह रही हूँ कि हम उसकी तपिश को इमेजिन करें. If a Jahannami was put in the fire of the dunya, he would fall asleep. उसको इतना सुकून मिलेगा, वो आग इतनी हल्की है दुनिया की आग कि वो सो जाएगा. अब आप सोचें जहन्नम का टॉर्चर क्या है. So is it worth somebody dying a kafir and going to hell forever? देखिए, ये पैसा तो बहुत खर्च करते हैं. Christians spend billions of dollars on missionary causes. Kuffar Makkah used to spend money on all of the propaganda against Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. आज भी जब ये कार्टून्स बनाते हैं, उसके लिए पैसा खर्च होता है. They spend money. अमाल जो है वो इनका जीरो होगा, जीरो वैल्यू विद अल्लाह.
इस्लाम को वैल्यू ऐसे करें कि मोमिन 4 रुपया भी खर्च करता है ना, वाह वाह, क्या उसकी वैल्यू है। एक खजूर भी मोमिन देता है, उसकी क्या वैल्यू है। अल्लाह इज गोइंग टू मेक इट द साइज ऑफ अहद। हदीस का मफहूम आता है कि मोमिन अल्लाह के नाम पे एक खजूर सदका करता है और अल्लाह उसको अपने दाएं हाथ में लेता है, राइट हैंड में, और अल्लाह उसको बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है। कयामत के दिन जब वो मोमिन जाएगा तो वो एक खजूर ओहद के जितना होगा। एंड ओहद इज नॉट वन माउंटेन, ओहद इज अ माउंटेन रेंज। वन खजूर, दिस इज व्हाट इट मीन्स टू बी अ मोमिन। अमल ऊपर क्या किया, काफिर का सारा पैसा भी लगाया, उसने जान भी लगाई, जीरो हो गया। मोमिन का क्या है, मोमिन का एक खजूर पहाड़ बन जाएगा। तो मोमिन बनना के क्या फायदे हुए थे। अब होता क्या है, लॉट ऑफ आवर टाइम्स आवर हस्बैंड्स आर वेरी बिजी विद वर्क, ठीक है। समटाइम्स आई फील लाइक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें टाइम दिया होता है कि हम घर के अंदर इबादत भी एक्स्ट्रा कर सकते हैं, कुरान भी पढ़ सकते हैं, तफसीर भी पढ़ सकते हैं। एंड समटाइम्स फॉर आवर हस्बैंड्स दे डोंट हैव दैट टाइम, दुनिया के काम संभालना। तो मोमिन है, मुस्लिम है, अल्हम्दुलिल्लाह, इफ दे आर वर्किंग टू फीड देयर फैमिली, अल्लाह इज ऑलरेडी गिविंग देम अजर, दैट्स पार्ट ऑफ देयर इबादत। जो हम घर में बैठ के इबादत कर रहे हैं, नफले पढ़ रहे हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं, और हमें लग रहा है हमने अपना काउंटर बढ़ा लिया, और वो बेचारे मीटिंग्स में बैठे हैं, धक्के खा रहे हैं, और एक चेक यहाँ से उठा के वहां पहुंचा रहे हैं। यही होता है ना, दुनिया संभाल रहे हैं। तो किसके लिए कर रहे हैं? इफ दे आर डूइंग इट टू फीड देयर, मुसलमान मोमिन अगर एक निवाला अपने बीवी या बच्चों के मुंह में डालता है, उसको अल्लाह अजर देता है। बन गई इबादत, पूरी जिंदगी बन गई। It's a lottery to be a मोमिन। मोमिन को बुखार होता है, उसके गुनाह धुल जाते हैं। Every penny that is spent on charity, every good that is done, हर चीज का अल्लाह अजर देता है। And Allah is saying, Allah did not do zulm, they did zulm on themselves। काफिर did zulm on themselves by doing shirk। जुल्म का मतलब क्या होता है? अरबिक के अंदर कहते हैं वाहदू शय्यन फी गैरि महालिह, यानी आपने एक चीज, यू हैव केप्ट समथिंग आउट ऑफ प्लेस, आपने एक चीज को गलत जगह रखा। फॉर इंस्टेंस, दिस इज अ डोर दैट अलाउज पीपल टू कम इनटू दिस रूम। नाउ इफ यू पुट दिस चेयर इन फ्रंट, 2 chairs in front of that door, the door is going to get blocked। ये आपने जुल्म किया, जुल्म किया, जगह अपनी जगह से हटा के एक चीज को रखा। शिर्क जुल्म कैसे है कि जो चीज अल्लाह के मुकाबले में हो ही नहीं सकती, उसको उठा के अल्लाह के साथ रख दिया, चीज को गलत जगह रखा ना। That is why it is, and that shirk creates a disbalance in the entire lives of these people, ठीक है। या अगर आपने खेती रॉन्ग सीजन में, एग्रीकल्चर में आपने गलत पौधा गलत सीजन में लगाया, जुल्म किया, यू वेस्टेड वेल्थ, you wasted charity, you wasted money, you wasted energy, और उसमें से निकलेगा कुछ भी नहीं, हासिल कुछ भी नहीं होगा। तो जो शिर्क करते हैं वो सारी जिंदगी अपनी जान भी लगाते हैं, अपना माल भी लगाते हैं, मेहनत भी करते हैं, अमल भी करते हैं, और अल्लाह के यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, जीरो वैल्यू। तो क्यों किया जुल्म? अल्लाह कह रहा है मैंने जुल्म नहीं किया, they did it, they are the ones who denied Allah in the Quran। अल्लाह कहता है ये बन जाते मुस्लिम, मैं इनको सबका अजर दे देता। And ayat number 118 to 120। अच्छा, O you who believe, do not take as confidence those besides your own people. These people would spare no pains to ruin you। कितनी सच्ची बात कह रहा है अल्लाह। Allah is exposing the hatred of the Yahud and the Kafir for the Muslim, and this is true 1400 years ago in Medina as it is today, ठीक है। They wish for that which causes you suffering। Enmity has been manifest from their tongues, but what their heart conceals is far worse। दिल में तो उससे भी ज्यादा कुड़ते हैं तुमसे। Indeed, we have made the revelation clear to you if you will understand। You are the ones who love them, though they have no love for you। This is a slap on our face। You are the ones, ये अल-हक है ये आयत, तुम्हें बहुत शौक है, तुम मनाते हो उनकी क्रिसमस और वैलेंटाइंस डे, उनके बच्चे ईद पे बकरे नहीं ज़िबा करेंगे कभी। You love them, they have no love for you। सोचे कुरान ने कितनी बड़ी, दिस इज एन एब्सोल्यूट ट्रूथ, ठीक है। And you believe in the complete book। When they meet you, they say we believe। Between they are alone, they bite their fingertips in rage। Tell them, perish in your rage। Surely Allah is aware of what is within the hearts।
It ails them if good comes to you, but if affliction strikes you, they rejoice. If you persevere and adopt taqwa, their schemes can never affect you in the least. Verily, Allah encompasses their actions. The special reference to context of this is that in Medina there were 3 kabilas of Yahud, the Banu Qurayza, Banu Kanka and Banu Nazir. ठीक है, ये 3 जो कबीले थे Jews के, they had their own deen, but they had the Arab culture. They had settled in Medina 500 years, 800 years before Prophet Muhammad ﷺ came to Medina. So they lived in Arab, they spoke Arabic, and they had social ties with the Arabs. They had business dealings. रज़ात के मामले थे, यानी इनकी औरतों ने उनके बच्चों को दूध पिलाया हुआ था, रज़ात, ठीक है. देन हलीफ बनाया हुआ था, जैसे बिजनेस पार्टनर्स बनाते हैं या अब किसी की प्रोटेक्शन में आ जाते हैं, ऐसे फ्रेंड्स आपने हलीफ बनाए हुए थे आपस में, यानी अरब एंड जूस, ठीक है. नाउ दे आर बीइंग मेड अलर्ट दैट यू नीड टू कीप दीस फ्रेंडशिप्स एट बे. योर ईमान, when Iman came into their life, it is the most precious thing, and it applies to us today as well, that you need to disentangle from the Jews. Ya ayyuhallazina amanu, this is either to all of the Muslims, this address, or to political leaders. And here the context is to the Muslim governance. What does Allah say? Don't tell your secrets. Muslim governments, don't tell your secrets to the kafir. Don't give your sensitive posts of governance to the kafir. Don't give it to a non-Muslim. Just for instance, देखिए इसमें कोई बुरी मानने वाली बात नहीं है. If you are in a country like the US and you say that I'm a Pakistani and I want to stand for elections, they'll say no, you have to be an American citizen. पहले American citizen बनो. तो अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं? डिमार्केशन, हमारा जो इस्लाम का डिमार्केशन है, इट्स नॉट डन ऑन द बेसिस ऑफ नेशंस. हमारा सिंपल डिमार्केशन है, या मुस्लिम है या काफिर है. दिस इज द डिमार्केशन ऑफ इस्लाम, ठीक है. एंड दिस इज नॉट अ प्रेजुडिस, दिस इज द ट्रूथ. This is the division of world population in the eyes of Islam is kafir and Muslim. And Islam will give kafir their rights. They will give them rights, but they will not make them part of the Muslim Brotherhood. ये कहा जा रहा है यहाँ पे, Muslim Brotherhood is greater. Whenever Muslims have shared their secrets with the kafir or they've asked for help, they have 99.9% been betrayed by them. ठीक है? कुछ अपनों की कमजोरियां, कुछ गैरों की मेहरबानियां. Islamic government cannot give their sensitive posts to anyone who is a non-Muslim. For instance, it makes sense, right? If there is a Muslim movement of jihad, can the commander of chief of that jihad army be a Jew? No. It doesn't make sense. तो अल्लाह पाक हाँ कह रहे, अल्लाह पाक कह रहे, अब friendship you are allowed to keep with a non-Muslim. You're allowed to, हद तक के निकाह भी करने की इजाजत है अहले किताब के साथ. तो ये दोस्तियां रखना, ये अवाम के लेवल के ऊपर फ्रेंडशिप्स आर अलाउड. दिल की मोहब्बत नहीं हो सकती, ये समझना बहुत जरूरी. शादी कर सकते हैं, दिल की मोहब्बत उनके तरीकों की, दीन की मोहब्बत नहीं हो सकती. दिल की मोहब्बत, if someone is a reverted Muslim for instance, his parents are kafir, he will still have a love for them. होगा कि नहीं होगा? कि जैसे मुसलमान हुए, अल्लाह माफी, नफरत तो नहीं हो जाएगी ना माँ बाप से. तो I told you, Islam is very practical. Original face, इसके अंदर एक्टिंग नहीं है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम loved अबू तालिब, उनके चचा थे, काफिर थे, but he loved him. तो दिल की मोहब्बत की इजाजत है. इनकी ऐसी मोहब्बत जो आज हमारे दिलों के ऊपर तारी है ना, इसकी इजाजत नहीं है. We wear Yahud, we eat Yahud, we speak Yahud, we celebrate Yahud, we teach our children storybooks of Yahud. Everything in our lives, everything from their nursery rhymes to what we wear, to what we eat, to what we, even our bags, our clothes, our shoes, everything is Yahud. ऐसी मोहब्बत is not allowed. ये आयत ये चीज मना कर रही है. दीन की मोहब्बत होनी चाहिए. You cannot love their deen. You can't go and love their churches and their Christmas and their alcohol, pork. Some people I know of Muslims in Muslim countries eating pork. सुना आपने? लेटेस्ट सुने. शराब पीने तक तो ठीक था, अब शराब पे उनका दिल नहीं भरा ना.
उन्होंने कहा हाँ तो ठीक है ना, अगर हम शराब पीते हैं वो भी हराम है, अब सुअर भी खा ले तो वो भी तो हराम ही है ना, बिग डील। उन्होंने कहा चलो ये भी ट्राई कर लो। That's what they say. But नहीं, दिल के अंदर से वही है ना, how do they promote it? कैसे उन्होंने टेम्प्ट किया, यही कह के कि टेस्ट रियली गुड, तो बस अस्तगफिरुल्लाह, एक आपको किरात आनी चाहिए, you know, and the love, what Allah Pak is saying is that your love will stop at hudud Allah. जी I don't understand. आपने कहा दिल सही है, but we shouldn't celebrate whatever. फ्रेंडशिप सही है, दिली मोहब्बत है, लेकिन दूसरी तरफ ये आ रहा है कि हम उससे शादी कर सकते हैं, तो शादी is a very ऐसा institution. भाई शादी के अंदर बीवी से मोहब्बत होगी, अलाउड, बीवी के दीन से मोहब्बत नहीं हो सकती। आपसे सल्लम को अबू तालिब से मोहब्बत थी, उनके रिश्तेदार थे, ठीक है, रिश्ते की मोहब्बत थी। अबू तालिब के तरीके से, शिर्क से, दीन से मोहब्बत नहीं थी। It draws a very clear line. No, I'm saying आज का जो क्रिश्चियन औरत है, कि वो हज़रत ईसा को सन ऑफ गॉड कहती है, वो तो काफिर है, वो तो काफिर है। अहले किताब तो मैंने कहा से ढूंढे? नहीं है, क्रिश्चियंस के अंदर बहुत सारे हैं who don't believe that Jesus is the son of God. अहले किताब में बहुत सारे ऐसे हैं, इनके भी फिरके हैं, सब जो ट्रिनिटी को नहीं मानते हैं, जो ट्रिनिटी को नहीं मानते हैं, वो कहते हैं नो, जीसस इज नॉट द सन ऑफ उनसे कर गॉड। सकते हैं आप। तो वो हाँ, वो मतलब शिर्क नहीं कर रहे हैं, तो आप वो अहले किताब में से हुए, उनसे कर सकते हैं। अच्छा, अब आगे, यानी कि अल्लाह ये कह रहा है कि योर लव नीड्स टू स्टॉप एट हदूद अल्लाह। अल्लाह हैज ड्रॉन अ लाइन इन द सैंड एंड सेड ये हद है, इससे आगे तुम नहीं जा सकते अपनी मोहब्बत में, ठीक है। और ज़हनी और नजरियाती बिगाड़ कब लाएंगे? दे मेक मुस्लिम्स डिसहार्टेंड फ्रॉम देयर ओन बीइंग, really they do that. I told you even in that, because they control the media, what did I tell you, how do they bring this impression of Muslims women कि वो जो भी मुस्लिम औरत होगी उसके 8 बच्चे होंगे और बेचारी वो अबाया में होगी, हमेशा वो रोटी पका रही होगी, और जो क्रिश्चियन औरत होगी उसने मिनी स्कर्ट पहना होगा, अमेजिंग हाउस, अमेजिंग, उसका किचन भी खूबसूरत होगा, एंड शी इज बेकिंग अ केक एंड शी इज सिंगिंग एंड डांसिंग एंड ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाइन, all imagery. But what they've done is that Muslims go and they have managed to dishearten Muslims from their own deen, ठीक है, and they like to create confusions, and Allah Pak is exposing that when you fail they love it. Every time the Muslims fail they have a loss. The West, अब देखिए यहाँ पे the gloves are off, West versus Islam, आज क्लियरली सब कुछ सामने आ गया ना। पहले तो बहुत स्वीट बनते थे कि वी वांट, हम तुम्हारी भलाई चाहते हैं, वी वांट बेस्ट फॉर यू। 1400 साल पहले कुरान ने एक्सपोज कर दिए, दे एंजॉय दैट यू आर डाउन ट्रॉडन, दे एंजॉय कि तुम्हारे ऊपर जुल्म हो, और जो वो हेट स्पीचेस मुंह से कह रहे हैं उससे ज्यादा हेट्रेड उनके दिलों में है। अल्लाह इज एक्सपोजिंग व्हाट इज इन देयर हार्ट्स इज वर्स देन व्हाट देयर टंग्स से, ठीक है। एंड Bahrain, for instance, Bahrain and Qatar, they were deliberately divided by the European forces, ठीक है। अब ये जो यहूद थे मदीना के अंदर 3 हिजरी के अंदर जब ओहद का वाकया हुआ था, तो खंदक के वॉर के ऊपर क्या पता चल गया था? खंदक के वॉर के ऊपर their enmity came out in the open, their disloyalty towards every Muslim at the time of खंदक। अगर अल्लाह ना बचाता हर मुसलमान मर जाता, every Musliman would have been murdered. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम and the forces were out on the field. खंदक के अंदर मुसलमान औरतें और बच्चे थे, एंड जूस ने अपनी प्रोटेक्शन पीछे से हटा ली थी और काफिरों को कहा था आ जाओ इधर से आके अटैक करो, इनकी नस्लों को खत्म कर दो, और अल्लाह ने बचाया। अल्लाह इन्फॉर्म्ड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड ही वेंट एंड ही सेव्ड देम। जस्ट इमेजिन। अब एजुकेशन सिस्टम हमारा जो है वो, हम मैंने आपको कहा ना, टू मच यहूद, इवन द चीज वी ईट इज यहूद। Everything from what we eat to what we wear, we love them too much. हमें इनके तरीके बहुत पसंद है, हमें क्रिसमस वैलेंटाइंस मनाने का बहुत शौक हो गया। एंड इवन व्हेन आवर एजुकेशन सिस्टम्स, ये जो बुक्स हैं ये किसने लिखी है? हमारी OA लेवल्स की इस्लामियात की बुक्स कहाँ से आती हैं? ब्रिटिश सिस्टम्स। ये पढ़ाएंगे हमारे बच्चों को, ठीक है, क्या पढ़ाएंगे? इस्लाम पढ़ाएंगे। एंड देन वी Islamiyat की books भी still, but they are the ones who are forming the educational systems for our children. They're even teaching them Islam. फिर हम कहते हैं our kids are not good Muslims. Duh.
I mean, think about what you did. Look at you handed your own, खुद ही नस्लें उनके हवाले कर दी out of love. और अल्लाह कह रहा है कुरान के अंदर, you love them too much. They don't love you, but you, तुम तो दीवाने हो उनकी मोहब्बतों के अंदर. इसी में 118 to I think 119 में, you're the ones who love them, so they have no love for you. Expose कर दिया ना अल्लाह ने. और हाँ अंतुम, हाँ ये तो तुम हो, तुम लोग. अल्लाह ने बता दिया they don't love you. Your kids celebrate Christmas. आज तो हमारे ऊपर है. उस वक्त ये अल्लाह ताला किसको कह रहे थे कि जो मदीना के अंदर मुसलमान थे, मैंने आपको कहा ना मदीना के जो मुसलमान थे, they used to work with Jews, they had business relations with them, they had friends with them, they were neighbors with them, इनके साथ काम करते थे, इनके साथ ही रहते थे, तो इनके साथ बड़ी दोस्ती थी. लेकिन अल्लाह ने उनको वार्न कर दिया कि अब ये जब तुम्हारे पीछे से जो इनके दिल में नफरत है, ये अपनी उंगलियां चबाते हैं जलन में मुसलमानों से, बिकॉज मुस्लिम्स वर बिकमिंग अ पॉपुलर मूवमेंट. एंड अगेन बनी इसराइल के हाथ से कुर्सी जा रही थी. बनी इसराइल वर ऑलवेज नोन एज द मुस्लिम नेशन ऑफ द वर्ल्ड, राइट? दे वर द अल्लाह वाले पीपल. अब मोहम्मद आगे सल्लल्लाहु, एंड मोहम्मद हैज दिस पॉपुलर मूवमेंट बिहाइंड हिम. He's becoming a military might in Arab. He's becoming the head of state in Arab. तो इनको तो जलन से कुड़न से ये मर रहे थे, ठीक है? And Yahud used to have finance the wars, ठीक है? And काफिरों के साथ मिलके, in fact they are the ones who made the most assassination plans on Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And इनका जो गुस्सा है, अल्लाह पाक कह रहा है मरो अपने गुस्से के अंदर, जलते रहो. Allah saying don't be scared of the Yahud conspiracy theories. इनका इल्यूमिनाटी है, इनका फ्रीमेसन है, ये दज्जाल की आने की तैयारी कर रहे हैं, करने दो. जितनी तैयारी कर रहे हैं ना, उतने तुम पक्के सच्चे मोमिन बन जाओ. कुरान पकड़ लो अपने हाथों के अंदर, अपने बच्चों के हाथों के अंदर, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ होगी. इनको जलने दो, इनकी अपनी कंस्पिरेसीज के अंदर खाक होने दो, अपने एंगर के अंदर, ठीक है? एंड अल्लाह नोज दिलों का हाल. So if they have worldly or dini success ever comes to the Muslims, they start roasting within their own hearts. And if Muslims move away from deen, फिर ये बहुत खुश होते हैं. फिर वो कहते हैं yes you are progressive Muslims. वो एक बहुत popular even in the West एक वो बन गया कि ना, are you progressive? Are you open-minded Muslims? Or are you extremist Muslims? सिर्फ दो categories छोड़ी हैं उन्होंने. ओपन माइंडेड का मतलब है कि आप हलाल को हलाल ना कहें, हराम को हराम ना कहें, जिसने जो करना है उसको करने दें. then you become open minded, you fit that category. And if you end up saying no, I'm actually a practicing Muslim, there's no extremism in Islam, but I'm a practicing Muslim, उनकी जान जाती है. yes, वो नमाज पढ़ने वाले मुस्लिम को भी कहते हो ये तो बहुत ओवर हो गया, ये भी ज्यादा है. तो अपने आप भी सुन्नतें पढ़ने खड़ी हो जाए तो बोले बस करो. हाँ सुन्नतें पढ़ना एक्स्ट्रा है, ज्यादा हो गया है, ये यहाँ पे भी है. तो क्यों? बिकॉज वी लव द यहूद. इनसे ही सारी साइकोलॉजी हम लेकर आते हैं, सारी बातें हम उन्हीं से ही लेकर आते हैं, उन्हीं के प्रोपेगेंडास है. इनफैक्ट दीन के जो टुकड़े बखड़े किए, द सेक्ट्स दैट आर क्रिएटेड इन द उम्मत आर क्रिएटेड बाय देयर कंस्पिरेसीज. दे आर द वन हु फंड एंड क्रिएट दी सेक्ट्स विद इन दीन इस्लाम. अल्लाह इनको खूब निपटेगा, उसकी फिक्र ना करें. देखिए होता क्या है, अब तुम्हारे वाले सवाल का जवाब हो गया. इफ यू मैरी देम, शादी करने की इजाजत दी गई है, ठीक है, अहले किताब से तो दी गई है ना, क्योंकि अहले किताब के अंदर शरीयत है, ठीक है. हमारे मुस्लिम बादशाहों ने क्या किया इंडिया के अंदर, दे मैरिड हिंदू वुमेन, ठीक है, और ये अपना शिर्क लेकर आई मुस्लिम घरों के अंदर. And they gave a lot of high positions to Hindu. अब जो उनके साले और ससुर और दामाद जो बन गए थे, हिंदू थे, तो बहुत हाई पोस्ट्स देते थे अपने कोर्ट्स के अंदर. Slowly and gradually, what happened was all of that shirk got mixed in with Islam. आज मुझे बताएं, आप किसी को कुरान क्लास करवा सकती हैं, मैं करवा सकती हूँ, कोई दीन का काम किसी को बोले 100 नफल खड़े होके पढ़ लो, वो पढ़ लेंगे. किसी को बोलो मेहंदी छोड़ दो, वो नहीं छोड़ेंगे. माइयों छोड़ दो, वो नहीं छोड़ेंगे. कहां से आई?
You see, what happened was when जब तुमने कहा ना fall in love with the women, not only that they fall in love with the women, they brought these Hindu women into their homes and they affected the culture. Culture आगे कौन चलाता है? औरतें चलाती हैं. तो अब हमारे ऊपर हम जो ये पीला जोड़ा माइयों का, लाल जोड़ा शादी का, जहेज, ठीक है, ये 7 सुहागने कुछ खिलाती है मेहंदी में, 7 सुहागने खिलाएंगे. ये क्या है? आप भी तो क्रिसमस घर में लाएगा, नहीं लाएगा? नहीं, दीन नहीं फॉलो कर सकते आप उनका. You are allowed to marry them, and most of it is so that you can eventually convert them, right? If they are, the main purpose is eventually, if they are following their Ahle Kitab, when they see the Quran and the Sunnah, they're going to convert. उनके उस पर नहीं convert होना आपने. अब आप सुने, जहेज जैसी नानत ये हिंदू लेकर आए हमारे कल्चर के अंदर. आज हमारे गरीबों के बच्चों की शादियां नहीं हो सकती हैं बिकॉज ऑफ जहेज. मैं खुद कितनी दफा ग्रुप के ऊपर पैसे जमा कर रही होती हूँ, भाई मुझे कोई पैसे दे दो ताकि फलाने की बच्ची की शादी हो जाए. ये हाल कर दिया. इस्लाम में जहेज नहीं है, 0 जहेज है इस्लाम में. नो, अरब कंट्रीज हैव नो जहेज. लेबनीज वगैरह में तो बहुत होते हैं. नहीं, इट इज मेहर. अरब कंट्रीज के अंदर मेहर है, और मेहर का मतलब होता है द बॉय हैज टू प्रोवाइड. एंड मेहर बाय द वे इज हक बाय द कुरान. मेहर इज द गिफ्ट. हाँ, हमारे यहाँ वो सबसे कम है, ये सही है, सबसे कम है. 5,000 लिखवा लो, 10,000 लिखवा लो. मेहर आप हस्बे जो आपकी औकात है उसके हिसाब से. जैसे अब हम इंशाल्लाह जब अपने बच्चों की शादियां करेंगे, इफ वी हैव सन्स, आपने जितना गोल्ड देना है ना अपनी बहू को, बंटों का जोड़ा देना है, जो भी देना है, सबको मेहर में लिखवा देना. ठीक है, जो गिफ्ट दे उसको मेहर में लिखवा ले, या उसको कोई अपार्टमेंट दे, या उसको घर सेट करके दे. ऑल ऑफ दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बॉय in meher, not the girl. The girl's father doesn't have to give a penny. निकाह के वक्त उसको सिर्फ खजूरें खिलानी है, वो भी अगर उसका हैसियत है तो खिला दे. बस सोचिए कितना आसान हो जाए दीन हमारा. She gave खजूर. Yes, alhamdulillah, that is. But alhamdulillah, you see now, if this were to be followed, people looking for पैसे वाली बहुएं ताकि वो बेटे सेट कर दे. Now this is आप तो बेटे बिकते हैं. कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं जिसके अंदर बेटे बिकते हैं. वो बोली लगाते हैं कि हमें अपार्टमेंट चाहिए, फलानी गाड़ी चाहिए, फलाना ये चाहिए. हमने अपने बेटे पे इतना पैसा लगाया, वो डॉक्टर है, वो बन गया, लॉयर बन गया, डॉक्टर बन गया. अब आप पैसे देंगे, बोली लगेगी और बेटा बिकेगा. ये तो इंसान ने छोड़ा. when she heard कि हमारे में तो जहेज होता है, सारा कुछ देते हैं, she was so horrified. She said it's like you're thanking the boy for marrying. Yes. She said in us we set the boy does everything. Absolutely, the boy does everything. In Islam, the boy does everything. देखिए, जब इस्लाम से बाहर जाएंगे, मैंने आपको क्या कहा, बहुत चोट खाएंगे. एक्सक्यूज ही होता है कि हाँ तो क्या हुआ, बेटी का ही तो कर रहे हैं, इसमें क्या हो गया. But you set a precedent. जो कर सकते हैं वो तो कर रहे हैं. You set a precedent. फिर जो गरीब है वो तो मुंह खोल के मांगते हैं. और शुरू हमसे ही हो. हमसे होता है ना. We are the trend setters. आपने अपनी बेटी को कुछ देना है, कैश देना है, कोई अपार्टमेंट देना है, कोई सिक्योरिटी देनी है, आप अपनी तरफ से देते हैं. जहेज बना के मत दें उसको. बेटी को भले तो बहू से नहीं रिसीव करो. It should not go into the in-laws. वो डिमांड लिस्ट देते हैं in-laws. अच्छा, फिर अब ये देखें, हमारी जो खुशियां हैं या हमारे गम है, जब सुन्नतों पे नहीं है, so what happens is that something else will replace the sunnat. Something else will replace sunnat. जहाँ खुशी और गम अटैच होगी. अब उसके अंदर क्या है? We've taken Jew culture, we've taken Hindu culture, we've taken a little bit of Christian culture, but we have no Muslim culture left. ना हमारी खुशियों में, ना हमारे गम में. And look at the backlash of society. That छोटी, we have 98% Muslims in this country. छोटी सी भी रस्म नहीं छोड़ेंगे. अगर आप सबसे पहले उनको ये रिवॉर्ड होता है, हाँ देखा, दर्स कहा था ना मत जाना दर्स पे, अब पढ़ दिया ना पीछे हमारी खुशियों के. हम डांस प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते, हम मेहंदी भी नहीं कर सकते, हम फन भी नहीं कर सकते. तो आप सल्लम की कौन सी बेटी की मेहंदी भी थी, कौन सी सुन्नत थी?
कौन सी इस्लाम की सुन्नत है? कोई चीज जो है वो सुन्नतों के ऊपर नहीं है, ठीक है? एंड we do not have the right to cancel sunnats and replace it with Hindu culture. फिर जब हम बैठ के क्लेम्स कर रहे होते हैं ना कि we love Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then sunnats need to reflect in our lives. When they are not reflecting, what happens? I told you, जब बदअमल कौम होती है ना, हमेशा when an ummah is not following the deen, then always you will see a lot of extravagance shown. ठीक है? जैसे Christians don't follow their deen at all, but Christmas is a huge festival. The lights and the decoration and the trees and the gifts and everything is larger than life. Why? उनको दिखाना होता है कि हम बड़े ईमान वाले हैं, हमारे अंदर बड़ा जोश है, बड़ा बलबला है. आज मुसलमान भी तो यही करते हैं. 12 रबीउल अव्वल पे लाइटें लगवा लो, हलवे पकवा लो, अगरबत्तियां जलवा लो, हमसे बहुत ज्यादा इलैबोरेट लाइट्स, डेकोरेशन, फेस्टिव. ठीक है? 12 रबीउल अव्वल के दिन if Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam were to come down onto the dunya and take a look at the masjids on 12th of Rabiul Awwal, the masjids are empty. फजर की नमाज पे वहां पे एक मुसलमान या 2 खड़े हुए. तो उम्मत क्या खुद बता रही है, अमल बता रहे हैं कि सारे क्लेम्स तुम्हारे झूठे हैं. तुम झूठ बोल रहे हो गले फाड़ फाड़ के कि you love Muhammad sallallahu alaihi wasallam. If his sunnats are not reflecting in your life, you are lying. तुम मुनाफिकत कर रहे हो, तुम ड्रामेबाजी कर रहे हो. एंड इसलिए Allah doesn't get impressed by our ड्रामेबाजी. जहेज की लानत ये हम हिंदू कल्चर से लेकर आए, ठीक है? एंड जवाल के ऊपर जवाल जब आएगा कौमों के अंदर, तो तकवा कहाँ से आएगा? Look at Allah's advice in the Quran. Allah is saying, if you love Allah, follow Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah will love you. ये आयत हमने की थी ना अभी 3-4 क्लासों पहले. The formula is simple. आप सल्लम की इताअत करो. And किस चीज से? From the love of Allah. Follow your Rasul, इताअत करो, and Allah will love you. हमारा क्या हाल है? हम टूथपिक जितनी चीजें नहीं चेंज कर सकते. सुन्नतों पे आना तो बहुत दूर की बात है. हमसे एक नेल पॉलिश नहीं छोड़ी जाती. ये फिर क्लेम्स हम देखें, ठीक है, 100% रस्में कुर्बान करना रसूलुल्लाह के लिए इस तरह से कि सिर्फ जो हलाल है वो करना है, जो हराम है वो नहीं करना है. एंड इट्स अबाउट द लव ऑफ द हार्ट. वेयर इज योर अटैचमेंट? Every rasam brings a part of that deen. It brings a part of that shirk within our culture. When we celebrate Christmas, आपको पता है कि Christmas क्या है? They say 25th of December is the birth of Jesus. But that's not all that they say. Actually, it's not even his birthday. It's not known. 25th December is not Isa alayhi salam's birthday. But when they say Christmas, actually what they're saying is 25th December is the birthday of the Son of God. So when you say to somebody Merry Christmas, you are accepting that 25th December is the day that the Son of God was born. कर बैठे ना शिर्क. पता चला? नहीं पता चला ना? Merry Christmas के I always write Happy Holidays. That's all I write. Happy holidays. When somebody is Christian, I have a Christian in my house. बहुत मैं उसको प्यार करती हूँ, बहुत उसको गिफ्ट्स देती हूँ, but I never say Merry Christmas. I say Happy Holidays. कैसे पता चला? ये तो मुझे पता ही नहीं था. मैंने कहा लो भाई, हम तो इतना डिक्लेयर करके सबको कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप्स भेज रहे होते हैं, क्रिसमस कार्ड्स चल रहे होते हैं, हैप्पी हॉलिडे का कार्ड बना ले. You're allowed to wish them. उनकी ईद है, ठीक है, आप उनको विश कर सकते हो, but you can't be part of it. Right? Because आपको तो पता है ना कि इसका मतलब क्या. आप शिर्क तो नहीं कर सकते. एंड किया किसने? देखें, हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं. My off latest, within my own personal life, my off latest agenda is against cutting a cake on a birthday. ठीक है? Trying to break this culture. And the resistance I got from my family. क्या मतलब है आपका? क्या हो गया है आपको? आप केक नहीं काटे? अरे भाई, मैं को 2 साल की बच्ची हूँ, क्या हो गया? अगर नहीं काटूंगी कोई कयामत आ जाएगी, कोई मर जाएगा, किसी को हार्ट अटैक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नहीं, ये एक माइंड ब्लॉक है जो हमने उनका अपना लिया, वो छोड़ते नहीं है. और वो हमारी तरह कोई वलीमे मनाते हैं?
वो करते हैं हमारे कल्चर की एक चीज बता दें जो वो करते हो, मेहंदी लगवाते हैं वो ईद पे, सवैया बनवाते हैं। अल्लाह ने कह दिया यू लव देम दे डोंट लव यू, बल्कि दे हेट यू। ऑल दिस मेस इज मोस्टली क्रिएटेड बाय वुमेन। भाई घर के अंदर मेहंदी माइयों और ये सब कौन करवा रहा होता है? अब्बा तो नहीं करवा रहे होते बेचारे, द मेन, उनको तो पता भी नहीं होता कितनी खप बनाई होती है औरतों ने, वो तो सिर्फ चेक दे के चले जाते हैं। दे आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन ऑल ऑफ दिस। हु इज इन्वॉल्व्ड? अस। ऑल ऑफ दिस शिर्क, all of this bid'ate, all of this falls on us, and if we don't make our children aware now, then it's going to be worse for their generation, then their kids' generation. So we need to be aware of it. ठीक है? If we don't do it ourselves, but we still go to the mehndis, तो भी सही है, हमें वो भी नहीं करना। तो तुम तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता करो, इवेंचुअली तो मेहंदियां खत्म करवानी है ना, इवेंचुअली तो हम तो काम करेंगे। हाँ नहीं, मगर हम नहीं रहते, लेकिन दूसरों की मेहंदी में जाके फन कर सकते हैं, या किसी और उसमें चले जाए। आप कोशिश करें, हमको बोले मेहंदी छोड़ो, तुम मेरा दर्श रखो। मैं कितना लगता है खाला नहीं आएंगी तो फिर ऑफेंड हो जाएगी। देखो ये तो रिश्तों की बेड़ियां है ना अफशा, ये तो रिश्तों की बेड़ियां है। मगर आप ये देखें कि आप कर किसके लिए रहे हैं। Somebody is got to bring a movement. मैं ये नहीं कह रही कि आप रहमी रिश्तों को तोड़ दें, ये नहीं करना, मगर आप प्यार से उनको समझाएं। और समझाएंगे कब? जब घर में शादी शुरू हो गई है तब थोड़ी समझाना है, then it's too late। आप समझाएं तब, पहले। और जितना हो सकता है, आई थिंक द ग्रेटेस्ट स्ट्रगल we're going to have is going to be with our own kids। जब हम उनको कहेंगे कि बेटा मेहंदी नहीं करनी है, माइयों नहीं करनी, वो हमारे गलों को पड़ जाएंगे। वो कहेंगे मैं सारी जिंदगी सारी दुनिया की मेहंदियों में गई हूँ, एंड आई हैव डांस्ड एट एवरी मेहंदी, एंड नाउ यू थिंक माय फ्रेंड्स कांट कम एंड डांस एट माय मेहंदी। बताना तो you did it। You did it। I think I'm the only failure I will say that there are a lot of kids who actually don't watch Mehndi, and I'm the one who schools like them something. अच्छा, my They sister don't is want on mehendis। That's a great movement, alhamdulillah। My alhamdulillah। sister says one एक इवेंट, and I say नहीं, दो तीन तो होंगे। नहीं देखो, वलीमा है इस्लाम के अंदर। क्या है इस्लाम की? देखिए इस्लाम का मकसद ये है कि निकाह आसान हो, डाइवोर्स आसान हो, दोनों चीजें आसान हो, किसी की जिंदगी मुश्किल ना हो। बोथ ऑफ देम आर एक्सट्रीमली इजी, डूएबल एंड अप्रोचेबल इन इस्लाम। कैसे? निकाह के लिए एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आप सल्लम गॉट मैरिड, एंड उनका निकाह था, एंड इट वाज स्टेट ऑफ वॉर। तो वो उन्होंने कहा दस्तरखान बिछा, उन्होंने कहा सब अपना खाना ले आओ, अपना खाना ले आओ। खाना उनका क्या होता था? खजूर, रोटी, वटेवर, सब खाना ले आओ। जब वो दस्तरखान पे बैठे, उन्होंने कहा ये मेरा वलीमा है। मीन्स ही डिडंट इवन पे फॉर दैट वलीमा, ही डिडंट इवन हैव मनी टू पे फॉर दैट वलीमा, लेकिन उन्होंने बता दिया, ये अनाउंसमेंट होता है ना वलीमा के, मेरा फलाने से निकाह हुआ है। ये बैंड बाजा बारात 25-50 करोड़ रुपए शादियों पे खर्च करना। कैन यू इमेजिन इफ वी पुट दैट मनी इनटू द मुस्लिम मूवमेंट? If we set up schools and colleges and universities where children are taught both Islam and the studies of the dunya, literary sciences and psychology and sociology. आप सोचे, मेरी एक दोस्त है in UK, अल्लाह उसको अजर दे, she is learning sociology, she was learning psychology, and then she is now presenting, मैंने उसका ग्रुप के ऊपर भी डाला था, she is presenting short lectures where she joins together Islam and psychology. And she says psychology अभी जितनी बातें कर रहा है, this is harmful, don't do this, वो कहती है इस्लाम 1400 साल पहले हमें ये सारी साइंस दे चुका है। इट्स माइंड ब्लोइंग, कितने हमारे पास फील्ड्स हैं काम करने के, लेकिन हम मेहंदियों शादियों से निकलेंगे तो किसी फील्ड में जाके काम करेंगे ना। दिस इज, यू सी व्हाट अल्लाह पाक मेक्स अस रीच आवर पोटेंशियल व्हेन वी बिकम अ मोमिन। ठीक है, और मुश्किल तो है, आपने जिस तरह का मेहंदियां छोड़ना वो छोड़ना, तो किसी ने बहुत खूबसूरत शेर कहा है कि इन्हीं पत्थरों पे चल कर आ सकते हो तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं। यानी इस्लाम के ऊपर अगर अब दिल कर रहा है ना, बस चलना शुरू करते हैं इंशाल्लाह। दिस इज ऑल्सो अ जिहाद, दिस इज अ जिहाद ऑफ आवर नफ्स, दिस इज अ जिहाद ऑफ आवर वांट्स। डर लगता है दुनिया छोड़ते हुए, बहुत डर लगता है। मुझे उस दिन किसी ने मैसेज किया, कहती है नियत तो मैंने कर ली है, मगर जब नियत कर ली उसके बाद मैं डरने लगी कि अगर कोई ज्यादा बड़ी मुश्किल आ गई तो क्या होगा। मैंने कहा तो क्या हुआ, नियत कर ली, जो मुश्किल अल्लाह देगा वो मुश्किल को भी वही आसान कर देगा। नियत क्या है कि अल्लाह बस हमें किसी काम पे लगा लेना, हमें तो अपना बना दे इंशाल्लाह। एंड विल कंटिन्यू। हाँ,
चलो, we'll continue with 121 inshallah tomorrow. Wal akhiru dawana and alhamdulillahi rabbil alameen. Subhanakallahumma